welcome you all in PRISM Foundation Advanced Training Program on Advanced Chemistry with Practical Approaches. A very good evening. I welcome each and every participant from every corner of the world who has connected via this platform. And it's our third day of our advanced training program. And today we have Mr. Murari Lal Gurjar. He is a scientific assistant, C Clinical Pharmacology Lab, ACTREC, Tata Memorial, Navi Mumbai, India. Let me brief about him. He is having a experience of more than 10 years and he is having practical hands on method development, validation, bioanalytical analysis of various anti-cancers drug on HPLC, UPLC, and via LCMS, and report preparation of at the experiment and research conducted in the field of bioanalysis. He also have a TDM service set up in his office. And let me tell you about his certifications and the achievement that he has received the training from University of Minnesota Masonic Cancer Center, that is in USA, on the sample preparation and LCMS analysis of tobacco carcinogens biomarkers. He has in practical hands and workshops on the fundamentals of mass spectroscopy, based proteomic and metabolomic for beginner center for system biology and molecular medicine from Mangaluru. Uh, Apart from that, he is actively involved in providing the trainings and educations to the trainees on short-term basis. He is actively involved in open day for student orientation and like technical commands. So that will be very much effective via this platform. All will be connected and maybe the session will be fruitful for the all. And he is having a very sound knowledge of bioanalytical part as well. In this session we are going to cover, and as we all know that we have covered our various sessions, like from last 2 days. First day we have covered the process chemistry, how it will be useful, and yesterday we have a session with Dr. Karthik, and he has covered the various open source tools that is used in the phenotypic drug discovery. Now today we have our eminent speaker, Mr. Murari. He's just covering the evaluation change from chromatography to HPLC and its practicability, applicability, and all the aspects and whatever the hurdles in between. Since we know that high performance liquid chromatography has long been recognized as one of the most useful and versatile analytical technique. It has now progressed from being a highly expensive method of analysis to be a routine technique with a wide application. Consequently, there is a requirement in many chemistry and chemistry related courses for the student to acquire a detailed understanding and the practical approaches and what are the hurdles they are facing during the performance. Since the normal we are very used to with the HPLC, but if we go for a further research part and like pharmacokinetic data modelings and bioanalytical studies, there are so many problems and hurdles we are facing. So for that we have conducted the session, and see Mr. Murari has a very practical hands, so might be you and I, everyone will be getting some best from his knowledgeable session. So I again welcome Mr. Murari Gurjar for his deliberation.
Yeah, thank you, ma'am, and thank you all of you to give this platform to presentation of SPLC and also my technique and my experience about the SPLC and LCMS. Truly, I share something that happen regularly in life, just like SPLC facing the problem with column leaking and also the peak scaling and fronting. And these are a lot of experience I have, and also I feel these things, the development of the method, many times pharmaceutical knowledge and pharmaceutical formulation and method development, lots of person have this type of knowledge, but in the part of bioanalytical, when you facing with plasma and urine and saliva sample, so you got a lot of problem with preparation of the sample. Yeah, ma'am. Are you voice are clear? Hello? Hello? Hello. Yeah, voice clear है मैम? Some background music is there. More noise is there. Right now? Yes, yes, sir. We are not getting the proper voice. Still, we are. Okay, okay. Just a minute. One second. Again? Hello. Again, same problem? Uh, This voice? Can you speak loudly? Hello? Can anybody write in a chat box? Is it audible? Because I'm also having like problem in hearing. I'm Hello? not getting the voice properly. Okay, it's okay now. Yes, sir. You can proceed. Now? Now it's perfect. Perfect. Okay, okay. So I have a lot of experience about the SPLC and LCMS and method development and validation. So today I am explain how to method develop and also how to prepare the sample, bioanalysis sample, just like a urine, plasma, and saliva samples. And this is a different strategies about the method development and validation. So I'm not fulfilled with the validation part right now because there is a lot of time. So today I'll go through the SPLC and the principle of the SPLC and different problems with SPLC troubleshooting and others. And also I'm explain our experience, just like I have a bioanalytical experience and some quality of generic drug analysis experience. So let me start our presentation. Okay. Just a minute. Okay. Um, Mr. Murari, please unmute. Okay. So today I will start from journey high performance liquid chromatography fundamentals and application practice. So before I go through the SPLC part, I will start from the chromatography. So what is the chromatography? So chromatography derives from the Greek word is a chroma. Okay, and also chromatography provides a way to identify compound and separate the compound.
So how to work different type of chromatography, just like a paper chromatography and linear chromatography and HPLC, high performance liquid chromatography, gas chromatography, and column chromatography. So lot of person have this type of experience about this all chromatography. So first of all, paper chromatography. So paper chromatography we are using for the separation of compound and identification of compound, and mostly people are using for intuitive profiling. But when you go through the paper chromatography separation, so very small amount of the exporting of our sample, and we separate out the very small amount of the compound. So we for the large amount of the separation, we go through the column chromatography. So with the help of the column chromatography, we got the Oh, voice has stuck some between. Uh, Please unmute. yeah, sorry ma'am, this maybe a network problem is No there. issue, no issues. Yeah, sorry. So again, yeah, Anmol. So paper with the column chromatography, we go through the long time. So somebody are thinking about that when we use the paste to column chromatography to reduce the time. So in this case, develop the HPLC, high performance liquid chromatography, and also other manage the gas chromatography. So these two techniques is more reliable in the pharmaceutical industries to identify the compound, to profiling the metabolite and impurity profiling, and also the quantification of the compound. So gas chromatography we are using for the volatile compound, but high performance liquid chromatography, just like a HPLC, we are used for the non-volatile compound. Okay, so my boss told me I need the quantification of some carbohydrate from this sample. Okay, so I'm thinking कि मेरे को क्या क्या जरूरत पड़ेगा. So first we need the a powerful separation technique. And also I have some idea about and I have also knowledge with the HPLC, some separation technique just like HPLC or gas chromatography. So these two things we made up each other, and we have for the separation, the HPLC is the fulfilled with our criteria to separate out the carbohydrate from the sample. Okay, so in the early stage, the HPLC, first name denoted by the high performance chromatography से before एक नाम आया था high pressure chromatography. Because high pressure chromatography क्योंकि जो column chromatography है उसी का बस प्रिंसिपल मॉडिफाइड करके हाई मतलब HPLC डेवलप हुआ है. तो उस जगह पे मतलब उन्होंने कॉलम क्रोमेटोग्राफी की जगह पे थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके हाई प्रेशर क्रोमेटोग्राफी डेवलप किया, जिससे कि क्या हुआ कि जो भी लैग स्पेस था, जो भी टाइम था फॉर द सेपरेशन के लिए, वो बहुत कम हो गया. तो इधर 16th सेंचुरी में जब HPLC आया था उसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते थे. उसके बाद 17th सेंचुरी में जब बहुत सारे कॉलम पे काम हुआ, क्योंकि कॉलम उस समय जब कॉलम की बात आती थी 16th सेंचुरी में, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता था, सिलिका या फिर एल्यूमिनियम. सिलिका में ज्यादा कुछ मॉडिफिकेशन था नहीं, सिंपल सिलिका था, उसके डिफरेंट डिफरेंट बीट्स थे, उसके बेसिस पे सेपरेशन होता था.
पर इट नॉट नेसेसरी कि वो सेपरेशन 100% प्योर हो या फिर हाई रिजोल्यूशन के साथ हो। बहुत सारे प्रोटीन को अगर रिजोल्व करना होता था तो जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट की प्रोटीन होती थी वो उस समय सिलिका से इजिली सेपरेट हो जाती थी, पर कुछ मॉलिक्यूलर वेट में सिमिलरिटीज होती थी वो इजिली सेपरेट नहीं होती थी। इसके बाद कॉलम क्रोमेटोग्राफी, मतलब मेनली कॉलम का जो मटेरियल है उसमें 17वीं सेंचुरी में बहुत सारा काम हुआ। उसमें क्या हुआ कि कॉलम के साथ, मतलब जो सिलिका है उसके साथ उसकी सिलिका के मैट्रिक्स को मॉडिफाइड किया गया, जस्ट लाइक C18 जोड़ा गया, एक लॉन्ग चेन ऑफ द C18 कार्बन, या फिर C8, या फिर फिनाइल कॉलम, या डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्राइल कॉलम, या डिफरेंट डिफरेंट कॉलम आए। उसकी वजह से क्या हुआ, एक परफॉर्मेंस बढ़ा। मतलब उस समय जब फर्स्ट ऑफ ऑल रिजोल्यूशन बहुत अच्छा मिला, सेकेंड वन पे सेपरेशन बहुत अच्छा मिला, थर्ड वन पे जो सैंपल वो 10 सैंपल या 2 सैंपल पर डे करते थे उसकी जगह पे हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी डेवलप हुआ, क्योंकि नैरो साइज हुआ, पार्टिकल साइज भी डिफरेंट हुआ, और स्पेसिफिक सिलेक्टिविटी के साथ हम लोग सेपरेशन अचीव किया। उसके बाद 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि एचपीएलसी में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद अभी रिसेंटली जो देखा जाए तो एचपीएलसी की जगह डेवलप हुआ है यूपीएलसी। यूपीएलसी इज अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। मतलब एचपीएलसी में जो टाइम टेकन आइडेंटिफिकेशन या किसी ऐसे को या किसी रन को टाइम लगता है वो 10 मिनट या 15 मिनट, वही यूपीएलसी में 2 मिनट एंड 3 मिनट है। बिकॉज ये जरूरी क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में अगर मेरे पास कोई सैंपल आता है वो डिग्रेडेशन से पहले अगर एनालिसिस होता है तभी मैं उसका ट्रू रिजल्ट सबमिट कर सकता हूँ। अगर वो 20 आवर में डिग्रेड हो जाता है तो फिर मैं एचपीएलसी से नहीं कर सकता। तो इसलिए गुड टेक्निक इज यूपीएलसी। आफ्टर दिस इज आरआरएलसी, रिपीट रिजोल्यूशन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड रिजोल्यूशन क्रोमेटोग्राफी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक्चुअल में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर वेट, मतलब बहुत सारे सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट, जैसे आइसोमर्स है। आइसोमर्स का अगर मतलब प्रोटीन जो होते हैं तो प्रोटीन के सेपरेशन के लिए प्रोटीन जितने भी होते हैं आइसोमर फॉर्म में होते हैं, तो उनके सेपरेशन के लिए अगर मेरे को प्योर प्रोटीन अगर सेपरेट करनी है तो मैं जाऊंगा रिपीट रिजोल्यूशन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफी अभी है मार्केट में। ओके, तो एचपीएलसी क्या करता है? एचपीएलसी इज अ सेपरेशन टेक्निक। तो ये कैसे सेपरेशन करता है? जस्ट व्हेन मेरे पास कोई सैंपल है, जस्ट प्लांट एक्सट्रैक्ट है, उस प्लांट एक्सट्रैक्ट को मैं इंजेक्ट करूंगा एक कॉलम में। इस कॉलम को हम लोग स्टेशनरी फेज बोलते हैं। स्टेशनरी फेज ऑल्सो इज हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है जब रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं। तो वो सैंपल क्या करता है, कॉलम क्या करता है, इंडिविजुअल कंपाउंड को सेपरेट आउट करता है विद द हेल्प ऑफ द कॉलम। ओके, फिर उसके बाद सैंपल कॉलम के अंदर इंजेक्ट कैसे होता है कि एचपीएलसी में क्या होता है, एक मोबाइल फेज होता है। तो मोबाइल फेज में हम लोग सैंपल इंजेक्ट करके इंजेक्ट करने के बाद अलोंग विद मोबाइल फेज आवर कंपाउंड गोज टू द कॉलम कंपार्टमेंट। आफ्टर द कॉलम सब कंपाउंड विद द प्रिंसिपल ऑफ द partition coefficient adsorption, with the help of this principle column separate out the different compounds. After the separation, our compound goes to the detector part, and detector gives the एक क्रोमेटोग्राम। तो डिटेक्टर से जो हमें इनपुट मिलता है, आउटपुट मिलता है, उसे हम लोग क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। ओके, तो क्रोमेटोग्राम किस तरीके से दिखाई देता है? तो वी हैव एक एक्सट्रैक्ट है हमारे पास, उसको हमने एचपीएलसी में रन किया तो डिफरेंट जस्ट ओके, तो एक क्रोमेटोग्राम है। तो जब मैंने रन किया तो उसमें डिफरेंट क्रोमेटोग्राम दिखाई दिया। तो उस क्रोमेटोग्राम में कंपाउंड ए, कंपाउंड बी एंड कंपाउंड सी, ये विद द हेल्प ऑफ द क्रोमेटोग्राफी में किससे रिस्पॉन्सिबल है? कॉलम। कॉलम के प्रेजेंस में वो डिफरेंट डिफरेंट अपने कंपोनेंट से सेपरेट आउट हुआ। मे बी हो सकता है कंपाउंड ए हैव एंटी कैंसर एक्टिविटी, मे बी कंपाउंड बी हैव एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, मे बी कंपाउंड सी हैव सम एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी। अगर ये सब हुआ तो इसके बाद मैंने एक्टिविटी एनालिसिस में जाऊंगा और मैं इस कंपाउंड को प्योर फॉर्म में सेपरेट आउट करूंगा। उसके बाद फॉर्मुलेशन एंड ड्रग डेवलपमेंट। ओके, तो क्रोमेटो एचपीएलसी कैसे दिखाई देती है? एचपीएलसी में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट इज अ पंप। पंप क्या करता है? पंप एक फोर्स के साथ एक स्पेसिफिक फ्लो एंड कांस्टेंट फ्लो के साथ मोबाइल फेज को फ्लो करता है। ओके,
तो ये किस तरीका से, मतलब इसमें दो मॉड्यूल होते हैं, वन इज द आइसोलेटिंग मोड एंड अदर वन इज द ग्रेडियंट मोड। आइसोलेटिंग मोड में क्या होता है कि मोबाइल फेज का कंपोजिशन कांस्टेंट होता है, जस्ट लाइक अगर मोबाइल फेज में मैंने 60% एसी एंड 40% वाटर रखा है या बफर रखा है, तो होल रन के थ्रू वो मोबाइल फेज का कंपोजिशन कांस्टेंट रहेगा, इसको हम लोग आइसोलेटिंग बोलते हैं। आफ्टर दिस इज द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या होता है, होल रन के थ्रू कंपोजिशन चेंज होता जाता है, मे बी स्टार्ट फ्रॉम द acetonitrile 0, after this 10 minutes the acetonitrile goes to the 20, 30, 40 and 100, after return to the our bake. So this is a gradient program. Next slide, I explain the gradient, what is the gradient and what is the necessary of the gradient. Right now I am explain only on gradient. After this is the injector part. So in the ओल्ड एज, मतलब पुरानी जो एसपीएलसी हुआ करती थी उनमें जो इंजेक्टर होता था टू टाइप से, मतलब मैनुअल इंजेक्टर हुआ करता था। अभी राइट नाउ रिसेंटली इंजेक्टर इज द ऑटोमेटिक इंजेक्टर है, जस्ट वी पुट द वायर्स इन द डिफरेंट पोर्ट एंड प्रिपेयर ए प्रोग्राम कि पोजीशन नंबर 1 पे स्टैंडर्ड रखा है, पोजीशन नंबर 2 पे सैंपल रखा है, वो अपने हिसाब से इंजेक्ट कर सैंपल लेता है और उसके बाद इंजेक्ट करता है ऑटो इंजेक्टर पार्ट में। आफ्टर दिस सेकंड पार्ट इज द इंजेक्शन वॉल्यूम। तो एचपीएलसी में इंजेक्शन वॉल्यूम 5 माइक्रोलीटर से 50 माइक्रोलीटर होता है, बट यूपीएलसी में वो इंजेक्शन वॉल्यूम 0.1 माइक्रोलीटर से 10 माइक्रोलीटर इज द एंड। आफ्टर इज द नैनो एलसी इज द डिफरेंट, तो उसका मतलब 0.1 से लेके 1 माइक्रोलीटर तक ही होता है। After this is the column. Column is the heart of the chromatography. Why? Because शुरू से लेके एंड तक पूरा मैं प्रेजेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन की बात करूंगा, बिकॉज एचपीएलसी क्यों यूज करते हैं, फॉर द सेपरेशन के लिए। और जो सेपरेशन होता है वो कहाँ पे होता है, कॉलम वाले कंपार्टमेंट में। अगर कॉलम अगर सही तरीका से काम नहीं करेगा तो मतलब सेपरेशन नहीं मिलेगा, सेपरेशन नहीं मिलेगा तो जिस एप्लीकेशन के लिए हम लोग ने एचपीएलसी यूज किया है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो देयर सम फिजिकल एंड केमिकल्स पैरामीटर्स होते हैं, उसकी बेस पे सेपरेशन होता है। तो बिहाइंड द सेपरेशन मतलब क्या प्रिंसिपल होता है, क्या प्रोसेस होती है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। आफ्टर दिस इज द डिटेक्टर। तो जब अपना कंपाउंड डिटेक्टर के पास आता है तो इंडिविजुअल कंपाउंड को डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद उसका एक रिस्पॉन्स देता है, और रिस्पॉन्स होता है क्रोमेटोग्राम के फॉर्म में। क्रोमेटोग्राम होता है पीक और हाइट के फॉर्म में। ओके, तो डिटेक्टर इज डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर होते हैं। यूवी डिटेक्टर होता है, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर होता है एंड आईआर डिटेक्टर होता है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज आल्सो इज द डिटेक्टर। तो डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर यूज करते हैं। व्हेन वी डिटेक्ट द नैनोग्राम लेवल टू पिकोग्राम एंड फेम्टोग्राम लेवल लिमिट ऑफ डिटेक्शन वी गो थ्रू द मास डिटेक्टर, तो उसका नाम हो जाता है एलसीएमएस, है ना। अगर हम लोग नैनोग्राम लेवल तक अगर हमें डिटेक्ट करना है तो यूवी डिटेक्टर इज एप्लीकेबल, बट कंपाउंड में प्रॉपर लैम्डा मैक्स होना चाहिए और कंपाउंड का यूवी सेंसिटिव होना चाहिए। अगर कंपाउंड के अंदर मतलब फ्लोरेसेंस नेचर है और उसका एक्साइटेशन एंड इनिशियल वेवलेंथ यू नो, तो वी गो थ्रू द फ्लोरेसेंस डिटेक्टर। इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द डिटेक्टर अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन वी यूज। After this is a computer. Computer मतलब control the modules, whole modules. Just like HPLC, without software HPLC run नहीं होगा, तो उसका एक सॉफ्टवेयर होता है। Just like I'm using a Dynavox HPLC, तो इसका सॉफ्टवेयर है Chromeleon। तो Chromeleon सॉफ्टवेयर से क्या है कि एवरी प्रोग्राम एक फिक्स होता है, उस प्रोग्राम के थ्रू वो रन होता है। जैसे प्रोग्राम में क्या होता है, एक फिक्स वेवलेंथ होता है, एक फिक्स रिटेंशन, एक फिक्स फ्लो रेट होता है, कॉलम टेम्परेचर होता है। इसे डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं जिसमें कि मतलब सॉफ्टवेयर में बिल्डअप होता है। आफ्टर द यूज ऑफ द एचपीएलसी, तो एचपीएलसी बेसिकली मैं यहाँ पे रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी को ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, इसलिए मैं जितने भी एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन जो दे रहा हूँ वो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी के यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे कि एचपीएलसी यूज होता है नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड के लिए और थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड के लिए। अगर ये नहीं है तो उसके लिए फिर हम लोग, अगर वॉलेटाइल कंपाउंड है या फिर अदर कंपाउंड है तो उसके लिए फिर हम लोग
गैस क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे। ओके, तो नॉन वोलेटाइल कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि हमारे ड्रग है, एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, एसिटामिनोफेन है। उसके बाद HPLC वी आर यूजिंग फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन, जैसे ब्लड प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, एंड ऑल्सो पेप्टाइड के सेपरेशन के लिए, या फिर डिटेक्शन ऑफ द पेप्टाइड, या identification of the peptides, या फिर quantitation of the peptide, we are using the HPLC. After this is many natural products, just like अगर मेरे पास कोई हर्बल प्रोडक्ट है ना, जैसे हर्बल कोई एक्सट्रैक्ट है, जैसे कि एग्जांपल कुरकुमीन, कुरकुमीन का मेरे पास हर्बल एक्सट्रैक्ट है। कुरकुमीन हैव द एंटी कैंसर एक्टिविटी, ऑल्सो एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी, एंड ऑल्सो रेडियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी, एंड ऑल्सो इज एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी। तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी है। बस कौन से कंपाउंड के कारण कौन सी एक्टिविटी है, उसके लिए हमें सेपरेट करना पड़ेगा सारे कंपाउंड। सेपरेशन के लिए फिर HPLC यूज करना पड़ेगा। सेपरेट करने के बाद दूसरा पार्ट आता है कि अगर इंडिया में जो पाई जाती है वैरायटी, जैसे कि विदाफेरिन, इंडिया के अंदर विदाफेरिन की जो वैरायटी पाई जाती है, जो प्लांट पाया जाता है, जैसे विदाफेरिन ए हमें मिलता है, उसमें 60% में रिकवरी मिलती है। जबकि इजराइल के अंदर जो विदाफेरिन का प्लांट है, उसमें मतलब हमें 80% तक रिकवरी मिलती है। तो ये रिकवरी कैसे फाइंड आउट की? विद द हेल्प ऑफ द HPLC, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई किया, डिटेक्ट किया कि ये कंपाउंड कितने अमाउंट में है। तो HPLC का ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है। अदर एप्लीकेशन जस्ट लाइक क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, मतलब क्वालिटेटिव नाम से है, सिर्फ और सिर्फ पता करना है कि ये कंपाउंड है कि नहीं है। तो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन आईडी डेवलप करना, जस्ट लाइक जैसे कि मेरे पास कोई फॉर्मुलेशन है, उस फॉर्मुलेशन में मेरे को इम्प्यूटीज देखनी है कि इस फॉर्मुलेशन के अंदर क्या क्या इम्प्यूटीज है, और इम्प्यूटीज है या नहीं है पहले तो ये फाइंड आउट करना। दूसरे एग्जांपल, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है और मेरे अदर फ्रेंड है, मेरे कलीग्स हैं, वो बोल रहे हैं सबके पास ना एंटी कैंसर ड्रग है, जस्ट लाइक अलोटेलिब। वो बोल रहा है कि मेरे पास अलोटेलिब है, 100% प्योर पाउडर है। दूसरा फ्रेंड बोल रहा है मेरे पास भी है। क्या मैं आंख बंद करके तो नहीं लूंगा? फर्स्ट मैं क्या करूंगा, उनसे 1 mg पर ml का एक सॉल्यूशन लूंगा, उसके बाद HPLC में रन करूंगा, फिर चेक करूंगा। पता पड़ा कि एक फ्रेंड ने जो मेरे को शेयर किया, उसके अंदर तो 60% ही प्योर ड्रग है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस। दूसरे फ्रेंड ने जो मेरे को अलोटेलिब ड्रग दिया, जो फॉर्मुलेशन या मतलब जो पाउडर दिया, उसके अंदर तो ड्रग है नहीं, ओनली ऑन व्हाइट पाउडर। तो विद द हेल्प ऑफ HPLC वी फाइंड आउट दीज थिंग्स। तो ये कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ द रिटेंशन टाइम, क्योंकि हर कंपाउंड का HPLC में एक स्पेसिफिक रिटेंशन टाइम रहेगा अगर हम लोग मेथड डेवलप करेंगे। जस्ट लाइक कंपाउंड ए retention time is 15 minutes, compound B is the retention time is 5 minutes। तो अगर मेरे को कंपाउंड बी का आइडेंटिफिकेशन करना है, तो मैं एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करूंगा और ओनली स्टैंडर्ड पहले से मेरे पास रहेगा, उस स्टैंडर्ड को मैं रन करूंगा। अगर उसी जगह पर मेरे सैंपल, जिस सैंपल का आइडेंटिफिकेशन करना है, उस सैंपल में उसी जगह पर अगर 15 मिनट पे पीक आ रही है, तो दिस इज द आइडेंटिफाई, हाँ मेरा कंपाउंड यही है। बट अभी मैंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं किया है, तो क्वांटिटेटिव के लिए अदर, तो बाद में मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। आपका दिस डिफरेंट टाइप ऑफ डिटेक्टर है, ये जैसे कि एक रिटेंशन टाइम के पैरामीटर से भी मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकता हूँ। अदर इज द मॉलिक्यूलर वेट। तो LC-MS में मैं सैंपल रन करके देख सकता हूँ कि जो मेरे ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट है, वो LC-MS में, मतलब मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, वो मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड है कि नहीं है इस सैंपल में। एंड डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर बेस्ड एक्सपायरी भी करते हैं लोग बात, एंड डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर दिस इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब हाउ मच कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन द सैंपल विद द हेल्प ऑफ द पीक हाइट एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द पीक एरिया। अगर किसी कंपाउंड का पीक हाइट ज्यादा है, तो सामने से ही समझ में आता है कि मेरे पास 5 सैंपल है, 5 सैंपल मैंने डिफरेंट डिफरेंट सीरियल वाइज मैंने रन किए। रन करने के बाद मैंने दिखाई दिया कि डी नंबर का जो सैंपल है उसका एरिया कम है, सी नंबर का सैंपल है थोड़ा सा ज्यादा है, डी का थोड़ा सा ज्यादा है, उसके बाद ए नंबर का जो सैंपल है उसका एरिया सबसे ज्यादा है। तो मतलब ए नंबर का जो कंपाउंड है वो मेरा इसमें सबसे ज्यादा है। अदर लोग डिफरेंट अप्रोच है लीनियर रिलेशन से, तो y इक्वल टू एक टेलीविजन प्लॉट करते हैं, उसके आधार पर भी एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द प्योर कंपाउंड with the help of the pipetted chromatography।
विद द हेल्प ऑफ द प्रिपेटिव क्रोमेटोग्राफी हम लोग प्योर कंपाउंड का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल, कलेक्टिंग द क्रोमेटोग्राफिक पीक at the exit of the detector and concentrating the compound with the evaporating, मतलब जो भी कंपाउंड हमें HPLC डिटेक्टर से, मतलब फर्स्ट एक एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास कोई एक्सट्रैक्ट है, उस एक्सट्रैक्ट का मैंने एक वेइंग किया 1 mg पर ml का एक सॉल्यूशन बनाया. उस सॉल्यूशन को मैंने प्रिपेटिव क्रोमेटोग्राफी में लोड किया कॉलम में. कॉलम के बाद वो वहां से सेपरेट होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड मेरे को क्रोमेटोग्राम दिखाई देंगे और एक पीक डिफरेंट डिफरेंट पीक मेरे को मिलेगी. जैसे कि दिस इज द प्रिपेटिव कॉलम, सो मे बी कि 1 मिनट 2 मिनट एंड 3 मिनट पर डिफरेंट डिफरेंट कॉलम मेरे को डिफरेंट डिफरेंट क्रोमेटोग्राम्स मेरे को फाइंड आउट होंगे. मे बी कि 10 मिनट वाला जो क्रोमेटोग्राम है वो कंपाउंड मेरे को तो फॉर्म में चाहिए, तो 10 मिनट पे मैं उसको कलेक्ट करूंगा. कलेक्ट करने के बाद वो एक मोबाइल से में या फिर मतलब डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा, इसलिए मेरे को इसको एवेपोरेट करना पड़ेगा. एवेपोरेट करने के बाद प्योर सब्सटेंस मिलेगा. उस प्योर सब्सटेंस को मैं डिफरेंट अप्रोच जस्ट लाइक NMR या फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री से चेक कर सकता हूँ कि ये कंपाउंड प्योर फॉर्म में आया है या फिर इसके साथ कुछ डिफरेंट कंपाउंड आए हैं. फिर उसके बाद मैं उसका एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट डिजाइन करूंगा, जस्ट लाइक टॉक्सिसिटी स्टडी डिजाइन करूंगा या क्लिनिकल स्टडी डिजाइन करूंगा. और उसके बाद फिर अगर वो फुलफिल होता है एक्टिविटी के बेसिस पे या फिर टॉक्सिसिटी के बेसिस पे या फिर उसके साथ मतलब जो इम्प्यूरिटीज है उससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, तो फिर मैं फॉर्मुलेशन के थ्रू जाऊंगा और उसका फॉर्मुलेशन करके तो मार्केट में ड्रग लॉन्च हो जाएगी. टेस्ट एनालिसिस, तो टेस्ट एनालिसिस नाम से समझ में आ रहा है बहुत कम अमाउंट में कुछ कंपाउंड है उसको हमें डिटेक्ट करना है. वाई क्यों जरूरत है? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि ट्रेस एलिमेंट जो भी है पॉल्यूटेंट होते हैं या फिर जो फॉर्मूले कोई कंपाउंड है जस्ट लाइक कोई ड्रग है, पैसिलिटेक्सल एंटी कैंसर ड्रग है, उसके डिफरेंट डिफरेंट इम्प्यूरिटीज है. तो यूएसएफडीए ने गाइडलाइन में डिसाइड किया है 0.2% से इम्प्यूरिटीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर 2% से तो 2% है तब तक से मतलब स्मॉल अमाउंट में है वो इम्प्यूरिटी. अगर 2% से ज्यादा है तो मे भी हो सकता है कि वो फॉर्मुलेशन ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर मतलब वो फॉर्मुलेशन हार्मफुल होगा, वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो इम्प्यूरिटी. तो अगर वो कंपाउंड मतलब कोई फॉर्मुलेशन में अगर वो इम्प्यूरिटीज बहुत ज्यादा है तो हाउ टू डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ द HPLC. जस्ट लुक एट द एग्जांपल. फर्स्ट पीक जो मेन सबस्टेंस है उसकी पीक है तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में है. फिर सेकंड जो छोटी छोटी पीक्स है वो बहुत ट्रेस अमाउंट में है. तो ये ट्रेस अमाउंट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कि मतलब वो गाइडलाइंस के फुलफिल हो रहा है क्या, उसी लिमिट में है क्या वो फॉर्मुलेशन में, या फिर एनवायरमेंट में सम पीपीपी मतलब जैसे क्लोरीन मतलब वाटर में फ्लोरीन कंसंट्रेशन क्या है या फिर क्लोरीन कंसंट्रेशन क्या है, कहीं ये लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, कहीं ये टॉक्सिसिटी नहीं. तो ये सब की एनालिसिस हम लोग विद द हेल्प ऑफ द HPLC कर सकते हैं. आफ्टर दिस द टॉक्सिसिटी स्टडीज जस्ट लाइक मतलब जितने भी मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जस्ट लाइक जो भी हमारे फार्मिंग है उस सब है उसमें हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं. तो वो पेस्टिसाइड का एक लिमिट में पेस्टिसाइड है कि नहीं, वो फॉर्म हो सकता है कि वो खाना हम खुद डेली यूज में यूज करते हैं पर उसमें इतना सारा पेस्टिसाइड है जिसकी वजह से हमें कोई डिफरेंट मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम हो रही है या लिवर डिस्फंक्शन हो रहा है या डिफरेंट है. तो इसके लिए डिटेक्ट करने के लिए ट्रेस मतलब जो इम्प्यूरिटीज है या फिर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये है विद द हेल्प ऑफ द HPLC वी गो थ्रू. ओके, in the previous slide, I mentioned two more mobile phase flow. One is the isokinetic elution, other one is the gradient elution. So what is the isokinetic? Look at here the isokinetic gradient में 70% and 30%. वो रन में से सेम कंपोजिशन में मोबाइल फेज रन होगा टू द 75 मिनट. जब मैंने कोई सैंपल लिया उस सैंपल में डिफरेंट कंपाउंड है 1 2 3 4 8 नंबर ऑफ कंपाउंड है. उस कंपाउंड को मैंने आइसोकिनेटिक इल्यूशन से रन किया HPLC में. जिस कॉलम यूज किया जॉर्वेक्स C18 कॉलम यूज किया, SG-C18 कॉलम यूज किया एंड मोबाइल फेज मैंने यूज किया 0.1% H2O एंड TFA ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड.
0.1% PFA ने H2O PH2 एंड बी में मैंने एसिटोनाइट्राइल यूज किया। जब मैंने ये यूज किया तो उसमें मेरे को 75 मिनट तक मेरे को सारी पीक इल्यूट होके आई। तो 8 नंबर की जो पीक है वो मोर देन 75 मिनट पे इल्यूट होके आई। पर बिहाफ ऑफ द ग्रेडियंट इल्यूशन जब मैंने इसी प्रोग्राम को थोड़ा चेंज किया विद द हेल्प ग्रेडियंट इल्यूशन किया, तो ग्रेडियंट इल्यूशन में मेरी सारी पीक विद इन द 30 मिनट में आ गई। ओके, so this is the beauty of the gradient illusion कि first of all तो separation वेरी गुड सेपरेशन एंड ऑल्सो मतलब जो पीक्स है वो डिफरेंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन वाइज भी आप देखोगे कि 1 और 2 नंबर की जो पीक है वो प्रॉपर सेपरेट नहीं हुई है। पर अगर 1 और 2 नंबर की अगर ग्रेडियंट इल्यूशन में आप देखोगे तो एक अच्छा खासा मतलब सेपरेशन हुआ है एंड रिजोल्यूशन भी अच्छा है इसके बीच में। तो मतलब कम टाइम में नंबर ऑफ सैंपल आप विद द हेल्प ऑफ द ग्रेडियंट इल्यूशन कर सकते हो। तो बिहाइंड द ग्रेडियंट इल्यूशन क्या प्रिंसिपल होता है, क्या हाइपोथेसिस होती है, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो डिफरेंट सेपरेशन मोड ऑफ द एचपीएलसी, तो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, आयनेक्स फेज क्रोमेटोग्राफी, टाइम एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी। ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन सारी एचपीएलसी का अपना अपना एप्लीकेशन है। जस्ट लाइक नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी एब्जॉर्प्शन फिनोमेना पे काम करती है, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन कोएफिशिएंट फिनोमेना पे काम करती है, एंड डिफरेंट एचपीएलसी है। तो शुरू में मैंने बोला कि मैं रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी पे ज्यादा फोकस करूंगा, तो वी गो थ्रू द डिटेल इन द रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में आप देखोगे कि जो स्टेशनरी फेज होता है वो नॉन पोलर होता है, ओके, और जो मोबाइल फेज होता है वो पोलर होता है। ओके, तो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, दिस इज अ रिवर्स टू द नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज होता है वो पोलर होता है, और जो मोबाइल फेज होता है वो नॉन पोलर होता है, तो इसलिए इसको रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। आफ्टर दिस रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी इज द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक दैट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स on the basis of hydrophobic interaction between the solute molecules, solid molecules मतलब अपना analyte in the mobile phase and the ligand attached to the stationary phase। तो stationary phase क्या होता है, आपने सबने सुना होगा सिलिका इज द stationary phase, only on silica is not a stationary phase। सिलिका के साथ कुछ ligand अटैच रहते हैं, जस्ट लाइक अ C18 ligand, C8 ligand, phenyl ligand, nitrile ligand। तो दिस इज द एक हाइड्रोफोबिसिटी डेवलप करते हैं, और अपना जो मॉलिक्यूल्स होता है वो भी हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए एक बाइंडिंग अचीव होती है और वो रिटेन हो जाता है कंपाउंड। कॉन्सेप्ट ऑफ द रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में एल्काइल एंड एरोमेटिक लिगेंड्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला C18, C8, फिनाइल है ना, नाइट्राइल और covalently bond with the stationary phase to provide the hydrophobic surface. The mobile phase passing over the hydrophobic stationary phase in a polar solvent to solvent the solute. Okay, तो मोबाइल फेज क्या होता है, पोलर होता है, वो हाइड्रोफोबिक स्टेशनरी फेज पे फ्लो करता है, और हमारा जो सॉल्यूट होता है वो भी क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है, और जो सॉल्यूट होता है वो किसके अंदर होता है, मोबाइल फेज के अंदर, क्योंकि मोबाइल फेज के साथ अलॉन्ग विद मोबाइल फेज our compound या analyte go through the column। Okay, so hydrophobic solute in the mobile phase tend to get bound to the stationary phase via hydrophobic interaction and thus from the basis of the separation। तो इसके तरीका से सेपरेशन होता है, क्योंकि जो कंपाउंड जितना हाइड्रोफोबिक होगा वो पहले उतना जल्दी बॉन्डिंग कर लेगा, कम हाइड्रोफोबिक होगा तो कम बॉन्डिंग होगी, तो इससे जस्ट लाइक वो रिटर्न हो जाएगा, तो कोई कंपाउंड पहले रिटर्न हो जाएगा, कोई बाद में होगा। आफ्टर दिस मोबाइल फेज का क्या रोल होता है वो भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा, पर दिस स्लाइड, तो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। तो सिलिका एंड सिंथेटिक पॉलीस्टाइरीन इज द मैट्रिक्स ऑफ द stationary phase। So look at it there, silica attached with the different C18 chains here, तो पेप्टाइड को उसने बहुत अच्छी तरीके से अटैच कर लिया। आफ्टर दिस लुक एट देयर हियर, तो सिलिका अटैच विद C8 या C18 टाइप की चेन के साथ वो अटैच है, तो इसकी वजह से प्रोटीन अच्छी तरह से बाइंड हो गई है। ओके,
So on the basis of the application या requirement, we go through the particle size of the these beads. जो सिलिका होता है एक बीट फॉर्म में होता है और ये बीट एक होमोजेनियस लेयर में इसके अंदर फुलफिल रहता है। ओके, तो दिस इज द लॉन्ग कॉलम, तो इसका पार्टिकल साइज ज्यादा होगा। दिस इज द स्मॉल कॉलम, इसका पार्टिकल साइज कम होगा। अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ये और छोटा है and go through the this. So this is the micron column. This all columns used for the HPLC. But अगर UPLC के लिए आप जाओगे तो और सब माइक्रोन के लिए जाना पड़ेगा, तो उनका पार्टिकल साइज और छोटा रहता है। Okay, the chemical synthesized peptides and oligonucleotides are best separated with the C18 ligand. ओके, तो जो मतलब हमें एप्लीकेशन, जैसे कि मेरे को पेप्टाइड सेपरेट करना है, या मेरे को प्रोटीन सेपरेट करना है, या मेरे को ड्रग सेपरेट करना है, एंटी कैंसर ड्रग सेपरेट करना है, या फिर मेरे को मतलब कुछ मिक्सचर है उसको सेपरेट करना है, उसके बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि मार्केट में कम से कम 10,000 से भी ज्यादा टाइप के मैट्रिक्स अवेलेबल है। बट द सिलेक्शन ऑफ द मैट्रिक्स अगेन वन पार्ट, तो उसके लिए हाइपोथेसिस है, वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में अगेन वी गो थ्रू द पार्टीशन फिनोमेना। मतलब रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी के बिहाइंड द प्रिंसिपल क्या होता है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, अगेन एक और स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। तो होता क्या है कि पार्टीशन मतलब रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी इज द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है पार्टीशन कोफिशिएंट का होता है। तो पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है कि मतलब जस्ट लाइक अ सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं कि अगर मैंने कोई कंपाउंड मतलब मेरे पास दो मिक्सचर है, दोनों की मेरे पास दो सॉल्वेंट है, दोनों इमिटेबल सॉल्वेंट है, वन इज द ऑयल है, अदर वन इज द वाटर है। ओके, तो उसके बाद मैंने अपना एक एनालाइट उसमें मिक्स किया, तो मेरा एनालाइट किसके साथ पार्टिशनिंग करता है, कितना परसेंटेज करता है, तो ये डिटरमाइन करने के लिए दिस इज द पार्टीशन कि मेरी कि मेरा कंपाउंड ऑयल के साथ 100% मतलब एफिनिटी शो कर रहा है, तो वो पूरा की पूरा वाटर में ना डिजोल्व होकर सीधा ऑयल में चला जाएगा। तो दिस इज अ पार्टीशनिंग बिटवीन का। ओके, तो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल पार्टीशनिंग बिटवीन द मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। तो अगर मेरे कंपाउंड की एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज्यादा है तो वो मोबाइल फेज के साथ सीधा पास आउट हो जाएगी, वो कहीं रिटर्न नहीं होगा। अगर मेरे कंपाउंड की एफिनिटी स्पेसिफिक फेज के साथ ज्यादा है तो वो स्पेसिफिक फेज के साथ रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो लुक एट द पिक्चर। फर्स्ट स्टेज में क्या है, स्टार्टिंग कंडीशन में क्या है कि एक मैट्रिक्स है, C18 टाइप के स्पेसिफिक फेज है, और ये मेरा कंपाउंड है। ये कंपाउंड अभी मोबाइल फेज के अलोंग विद मोबाइल फेज के साथ स्पेसिफिक फेज के पास आया। आने के बाद क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू है वो मतलब मेरा कंपाउंड एंड ऑल्सो इज स्पेसिफिक फेज हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक नेचर का है, तो इनके बीच में एक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हुआ, कोवलेंट बॉन्ड एक बॉन्ड बना, बॉन्ड बनने के कारण वो कुछ देर के लिए वहां पे एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद अगर ये कंपाउंड एब्जॉर्ब हो जाता है, तो अगर डिटेक्टर तक नहीं पहुंचता है तो ये कंपाउंड मेरे को कभी दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए नेसेसरी है कि ये कंपाउंड को डीअब्जॉर्ब भी होना चाहिए, मतलब वहां से डीअटैच भी होना चाहिए। तो ये डीअटैच होने के लिए मैं मोबाइल फेज का कंपोजिशन चेंज करूंगा और ये कंपाउंड डीअटैच हो जाएगा। डीअटैच होने के बाद आप देखोगे फोर्थ वाले नंबर में, तो फोर्थ वाले स्टेजेस में सारा का सारा कंपाउंड डीअटैच हो गया। डीअटैच होने के बाद फिर दूसरे सैंपल के लिए, मतलब मेरे पास नंबर ऑफ सैंपल है, फर्स्ट नंबर मतलब एक सैंपल मैंने लोड किया, उसको 20 मिनट लगा, 20 मिनट में वो सारा फिनोमेना हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, डिसॉर्प्शन हुआ, फिर डिसॉर्प्शन हुआ, फिर ये होने के बाद वो डिटेक्टर के पास डिटेक्ट हुआ, फिर दूसरा सैंपल आएगा, उसको भी वो एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो इसके लिए फिर कॉलम और या स्पेसिफिक फेज को रीजनरेशन होना जरूरी है। तो एक ग्रेडियंट इल्यूशन में क्या होता है, एक इक्यूमुलेशन फेज होता है, तो एक इक्यूमुलेशन फेज में वो स्पेसिस के द्वारा से रीजनरेट हो जाती है। क्यों रीजनरेट होती है, तो वी गो थ्रू द स्लाइड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉल्यूट बिटवीन द टू फेजेस डिपेंड ऑन द बाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, द हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द सॉल्यूट एंड कंपोजिशन ऑफ द मोबाइल फेज।
conditions are designed to favor adsorption of solute from the mobile phase to stationary phase. Subsequently, the mobile phase composition is modified to favor desorption of the solute from the stationary phase back into the mobile phase. तो मेरा कंपाउंड अब कहाँ आ गया? मोबाइल फेज में. Okay, in this case, absorption is considered the extreme accumulation state where the distribution of the solute molecules in the essentially 100% in the stationary phase. So, desorption is an extreme equilibrium state where the solute is essentially 100% distributed in the mobile phase. So, this phenomena, so इसलिए ग्रेडियंट फेज की जरूरत होती है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, ग्रेडियंट में होता क्या, जैसे कि मेरा कंपाउंड लिटिल बिट हाइड्रोफोबिक नेचर का है. अगर बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक नेचर का है तो मतलब HPLC का फिनोमेना है कि लाइट इन लाइट, अगर वो जैसा है वो वैसे को पसंद करता है. अगर बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक नेचर है और मेरा स्टेशनरी फेज भी हाइड्रोफोबिक है तो वो दोनों बाइंडिंग कर देंगे. पर मेरा कंपाउंड मतलब मेरा एनालाइट लिटिल बिट हाइड्रोफोबिक नेचर का है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले हाइड्रोफिलिक नेचर के लिए मोबाइल फेज का जो कंडीशन है वो ऐसी रखनी पड़ेगी कि मोर हाइड्रोफोबिक होगी. तो स्टेशनरी फेज से जैसे मेरा कंपाउंड पास आउट होगा तो मेरा कंपाउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा. उसके बाद मैं धीरे 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 ऑर्गेनिक फेज को बढ़ाता जाऊंगा. एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑर्गेनिक फेज इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो कंपाउंड में हाइड्रोफोबिसिटी बॉन्ड बनाया था उसकी वजह से एक आयनिक बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से एक आयनिक बॉन्ड के कारण मेरा कंपाउंड द्वारा से मोबाइल फेज में आ जाएगा और मोबाइल फेज से वो जहां पे रिटेन हुआ था वहां से डी रिटेन होगा और डिटेक्टर के पास जाएगा और वो डिटेक्ट हो जाएगा. इसलिए मोबाइल फेज टू टाइप्स, मोबाइल फेज में क्या होता है, टू कंपोजिशन होते हैं. वन इज द ऑर्गेनिक टाइप का लिक्विड होता है, अनदर वन इज द इनऑर्गेनिक. तो ऑर्गेनिक हम लोग यूज करते हैं फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, ओके, एंड ऑल्सो इंक्रीज द पोलरिटी ऑफ द कंपाउंड. और इनऑर्गेनिक हम लोग यूज करते हैं फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ द कंपाउंड. तो ये दोनों के कंपोजिशन के बाद हमारा प्रॉपर सेपरेशन मिलता है. ओके, मोबाइल दीजिएगा रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी. रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी मैंने प्रोटोकॉल्स में लोग ब्लैंड वाटर यूज करते हैं एंड ए मिक्सेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं. मिक्सेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज जस्ट लाइक एसीटोनाइट्राइल एंड मिथेनॉल एज अ मोबाइल फेज. तो पर्पस क्या है मोबाइल फेज का? द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज टू मेंटेन द पोलरिटी at a low enough level of the solute to dissolve in the mobile phase and at high enough to facilitate binding of the preferred molecules with the stationary phase. So this is the behind the phenomena of the reverse phase chromatography की कैसे काम करता है मोबाइल फेज और stationary phase. Once the molecule of interest is bound to the column matrix, just like a stationary phase, it made to dissociate from it by decreasing the polarity, further by increasing the concentration of organic solvent in the mobile phase. तो ग्रेडियंट में हम लोग क्या करते हैं, धीरे 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 ऑर्गेनिक का कंपोजिशन बढ़ाते जाते हैं. तो ऑर्गेनिक एक टाइम तक 100% हो जाता है. तो डिक्रीजिंग द पोलरिटी, दिस प्रोसेस of varying the amount of organic solvent in the mobile phase to separate the molecules of interest is called the gradient emission. Okay, so this is the introduction of the reverse phase chromatography and different things just like क्या component होते हैं और उसके बाद gradient क्या होता है, कैसे रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में कॉलम का स्ट्रेटजीज रहता है या फिर मोबाइल फेज कैसे काम करता है, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया. अभी मैं फर्दर सेशन है मेरा जो ट्रबल शूटिंग. ओके, ट्रबल शूटिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने पीपुल्स ने बहुत सारे लोगों ने मतलब HPLC पे काम किया होगा तो कभी पीक सेपरेट नहीं हो रहा है, कभी पीक का रिजोल्यूशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, पीक में फ्रंटिंग आ रही है, पीक में टैलिंग आ रही है, या फिर एक ब्लैंड टाइप की पीक आ रही है, या फिर पीक या डिफरेंट टाइप की क्रोमेटोग्राफी मतलब प्रॉब्लम फेस होती है. तो इसके लिए
मतलब कुछ स्ट्रेटजीज है जिससे कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। क्या होता है कि मैनी टाइम्स मैंने देखा है कि मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ कम से कम 2 घंटे तक तो हम लोग यही देखते रहते हैं कि पीक कैसे आ रही है, पर पीक क्यों ऐसे आ रही है ये हम कभी फाइंड आउट नहीं करते हैं। क्योंकि अभी तो रिसेंटली मतलब जो अभी इस एज में मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं उसमें सारे लीक डिटेक्टर एंड डिफरेंट डिफरेंट सेंसर है। तो अगर आपका मोबाइल पेज लीक हो रहा है, या आपका इंजेक्शन वॉल्यूम लीक हो रहा है, या फिर इंजेक्शन कैंसी लीक हो रहा है, या कॉलम लीकेज है, या फिर डिटेक्टर लीक है, तो वो सिग्नल्स देते हैं। पर मैनी टाइम्स ऐसे होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमने कॉलम उतनी टाइट करना था, उतना टाइट नहीं किया, तो इसकी वजह से पीक का स्टेट चेंज हुआ या कुछ हुआ। तो हम लोग मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फर्स्ट हमें जो एचपीएलसी का स्क्रीन है, इसके लिए एचपीएलसी का जो स्क्रीन है उसको देखना चाहिए कि मतलब जैसे कि जो जितनी भी एलईडी है उस एलईडी में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है। तो आई गो थ्रू द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन राइट नाउ। तो मे बी यू लुक एट द, so you look at the SPLC there. Yeah, there is a different LEDs there. So you check the every compartment. See, all compartments are going to the proper function, and after this you go to the column check, and after this you go through the injection volume and mobile phase। many times mobile phase 2 दिन या 3 दिन पुराना रहता है, उसमें कंटामिनेशन होता है, बहुत सारा फंगस ग्रोथ होता है, प्रॉपर फिल्ट्रेशन असेंबली यूज नहीं किया आपने क्लीनिंग। तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई कि कहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है, कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर रिस्पॉन्स प्रॉब्लम आ रहा है, जो रिस्पॉन्स आपको प्रॉपर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। आफ्टर दिस, अवेयरनेस ऑफ कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। मैनी टाइम्स क्या होता है कि हम नए नए सीखते हैं, हमें लगता है कि इसको तो बस थोड़ा टाइट कर दो ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ दूसरी प्रॉब्लम आ जाए। तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के ट्रबल शूटिंग के बारे में। आइसोलेशन ऑफ द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। हो सकता है कि मतलब आपको कम से कम फील हुआ कि मतलब ये 15 टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें से सिंगल प्रॉब्लम को आइसोलेट करें, रेक्टिफाई द प्रॉब्लम इफ एबल। अगर पॉसिबल है तो उसको रेक्टिफाई करो, अगर नहीं है तो फिर अपने मेंटेनेंस मैनेजर को बुलाओ। डोंट डू द मोर ट्रबल शूटिंग विदाउट नॉलेज। ओके, ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। प्रोसेस के लिए क्या करना है, चेक द सिंपल थिंग फर्स्ट। जो तो कि इससे हो सकता है एकदम सिंपल, ऐसा नहीं कि मतलब इसको ओपन कर दूंगा उसके बाद पीछे हो सकता है कि वहां से लीकेज हो रहा है। ओपन कुछ नहीं करना, पहले इजी वे में जाओ। कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑप्टेन टू एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, है ना। हो सकता है कि कुछ समय पहले मतलब फर्स्ट देखो कि वाकई में प्रॉब्लम है कि नहीं है। कि मैनी टाइम्स क्या होता है, जैसे कि एलसीएमएस में तो डेली ये प्रॉब्लम आता है कि रिस्पॉन्स कम आ जाता है। तो रिस्पॉन्स कम आने का रीजन ये भी हो सकता है कि मतलब जो सोर्स है वो कंटामिनेट हुआ है, तो इसकी वजह से रिस्पॉन्स कम हुआ है। पर आपका कैलिब्रेशन अगर आप लीनियरिटी प्लॉट करोगे वो पास हो जाएगा। तो अगर आपका उसमें से काम हो रहा है तो डोंट डू लिस्ट पॉसिबल कॉजेज, वर्क स्टेप बाय स्टेप मैनर, चेकिंग द आउटकम फ्रॉम एनी चेंज मेड, एटलीस्ट रिसोर्ट गेट हेल्प फ्रॉम एग्जाम्पल योर इंस्ट्रूमेंट सप्लायर। मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको पहले जो भी सप्लायर है उससे पूछो कि भाई मतलब लीकेज हो रहा है, या फिर ये ट्यूबिंग ब्लाइंड हुई है, या फिर इसका कुछ प्रॉब्लम, तो उनको वो आपकी हेल्प करेंगे। हेल्प डेस्क और योर लोकल टेक्निकल सपोर्ट डिपार्टमेंट को डायरेक्ट इन्फॉर्म करो। ऑल प्रॉब्लम एंड करेक्टिव एक्शन शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन द इंस्ट्रूमेंट लॉ। भाई ये डॉक्यूमेंटेशन इज नेसेसरी, क्योंकि हो सकता है कि मेरा टर्नओवर मतलब मैं यहाँ पे हूँ 4 साल के लिए हो, 5वें साल मेरा कहीं ट्रांसफर हो जाता है, कोई दूसरा बंदा आता है, तो कम से कम हाँ हिस्ट्री में ऐसा प्रॉब्लम आता था तो वो विदाउट टाइम वेस्ट किए उस चीज को वो सॉल्व कर सकता है। ओके, तो फर्स्ट वी गो थ्रू द विजुअल इंस्पेक्शन। सबसे पहले मतलब एलईडी वगैरह चेक करना है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद मोबाइल पेज को चेक करना है,
मोबाइल को स्पोर्ट्स पे जो भी जितना भी है उसमें कोई फंगल ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, प्रॉपर लेवल है कि नहीं है। हो सकता है कि मैनी टाइम्स लेवल की प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉपर लेवल करना है बोतल्स को। जस्ट लाइक कि जो भी केमिकल है उसको रिटर्न करो, उसका डेट डालो, जिस दिन आपने यूज किया है उस डेट को लिखो, और उसके बाद जिससे सैंपल प्रिपेयर किया है या मोबाइल से प्रिपेयर किया उसका नाम और सिग्नेचर होना चाहिए, जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हो कि ये 2 दिन पुराना है या फिर उस बंदे से कोई प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उससे जाके डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज विदाउट लेवल यू डोंट फाइंड आउट द प्रॉब्लम। तो प्रेशर, दूसरे नंबर पर प्रेशर मतलब जो कॉलम अभी आप मतलब अगर आपका पीक का कुछ डिस्टर्बेंस आया है तो यू गो थ्रू द स्क्रीन ऑन द प्रेशर बार, आप चेक करो कि ये प्रेशर इस कॉलम में मेरे पास 600 बार आता था, तो ये रेगुलर वही प्रेशर है या फिर इससे रिड्यूस हुआ है या फिर इससे हाई गया है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद बेसलाइन इरेगुलरिटी, अब हो सकता है कि बेसलाइन बहुत सारी इरेगुलरिटीज आ रहा हो, तो उसके बाद चेंज इन द क्रोमेटोग्राफी, तो यू क्रोमेटोग्राफी चेंज कर सकते हो, मोबाइल से इसमें कंपोजिशन चेंज कर सकते हो, कॉलम चेंज कर सकते हो, या फिर वॉल्यूम ऑफ द इंजेक्शन चेंज कर सकते हो, या फिर कॉलम टेम्परेचर चेंज कर, या डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर वेयर यू वांट टू चेंज। प्रॉब्लम विद द क्रोमेटोग्राम, अगर क्रोमेटोग्राम में प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट लाइक अ पीक टेलिंग आ रहा है, नॉर्मल पीक है, उसके बाद पीक टेलिंग आया, तो क्या हो सकता है, ब्लॉकेज ऑफ द स्लिट। सो दिस इज द स्लिट, ओके, ये ब्लॉक हो सकता है। ओके, इंटरफियरिंग पीक, मे बी कि एक के साथ दूसरी पीक का कुछ इंटरफियर आ रहा है, तो हो सकता है आपका मोबाइल फेज जो है वो पुराना है, 2 दिन पुराना है, मोबाइल फेज का पीएच चेंज हो चुका है, या फिर मोबाइल फेज में कुछ कंटामिनेशन है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर कॉलम को आप बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हो, तो मे बी कि या तो रिप्लेस द कॉलम, या फिर फर्स्ट यू गो थ्रू द फ्लश द कॉलम, उल्टा करके दिस एवरी कॉलम हैव द डायरेक्शन, यू लुक एट देयर, मे बी you look at there, every column have the direction, तो इस डायरेक्शन के अपोजिट जाके आप पर कॉलम को प्लस कर सकते हो। एवरी कॉलम का टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है जो ऑनलाइन इजीली अवेलेबल होता है कि इस कॉलम को, क्योंकि हर वेंडर का, जैसे जिस मेरे पास अभी फिनोमिनस का है, वाटर्स के कॉलम आते हैं, एजुलेंट के कॉलम है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के कॉलम होते हैं, उनके सबके फ्लशिंग एंड कॉलम रीजनरेशन का डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं, तो डोंट मिक्स अप दीज थिंग्स। अगर फिनोमिनस का डिफरेंट है तो उसी फिनोमिनस के ही प्रोटोकॉल के थ्रू आपको जाना होगा। ओके, रॉन्ग मोबाइल फेज, जस्ट एडजस्ट द पीएच, मे बी कि अगर 3 की जगह 2 पीएच किया है, तो दिस थिंग्स यू वांट टू चेक। आफ्टर पीक फ्रंटिंग, जिसमें नॉर्मल पेज फ्रंटिंग मतलब स्टार्टिंग में ही पीक को कुछ फ्रंटिंग आ रहा है, सो लो टेम्परेचर, मे बी कॉलम का कंपार्टमेंट का आपने जो कॉलम कंपार्टमेंट है उसका प्रेशर आपने कम किया है। अब कॉलम कंपार्टमेंट के टेम्परेचर से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, देखो कॉलम का एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे आपको काम करना है। अधिकतर मतलब जैसे कि अभी माइक्रोन कॉलम आ रहे हैं, वो 40 से 60 डिग्री के टेम्परेचर पे आप इजीली काम कर सकते हो। अगर आपने उसको 25 डिग्री टेम्परेचर रखा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो थिंक अबाउट दैट, जस्ट लाइक लेट मी वन एग्जांपल, जस्ट लाइक दिस इज द ट्यूब, यहाँ पे मोबाइल फेज फ्लो हो रहा है, ये मोबाइल फेज जहाँ से फ्लो होता है, आपने कभी भी देखा होगा एचपीएलसी की वो ट्यूबिंग थोड़ा सा वाइड रहती है। जब मोबाइल फेज कॉलम के अंदर जाता है, तो कॉलम फेज के अंदर दिस इज द डायमीटर, तो बहुत नैरो डायमीटर होता है, तो वहां पे एक विस्कस टाइप का फील होगा, इसकी वजह से ये कॉलम को पीक को फ्रंटिंग आ सकती है। अगर कॉलम का टेम्परेचर प्रॉपर रखा है तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी और इजीली जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ द फ्लो है वो इजीली फ्लो रहेगा। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि 25 डिग्री टेम्परेचर पे हमेशा ये प्रॉब्लम आएगा, है ना, वो डिपेंड करता है मोबाइल के कंपोजिशन पे कि आपने मोबाइल फेज में बफर मैनी टाइम्स हम लोगों को 50 मिलीमोलर का बफर यूज करना पड़ता है, तो दिस इज द प्रॉब्लम। रॉन्ग सैंपल सॉल्वेंट, आपने सैंपल सॉल्वेंट मतलब जो सैंपल आपने प्रिपेयर किया है उसको रॉन्ग सॉल्वेंट में प्रिपेयर किया है, जस्ट लाइक वैसे मतलब एक प्रैक्टिकल गाइड प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मतलब जो सॉल्वेंट है वो मोबाइल फेज में ही मोबाइल फेज मतलब जो डाइल्यूएंट है वही
डाइल्यूशन के लिए यूज करना चाहिए। अगर आपने उसका मेरी की मतलब जो आपका ड्रग है वो 2.5 pH पे अच्छा आयोनाइज होता है और आपने वो मोबाइल फेज में मोबाइल फेज ना यूज करके डाइल्यूएंट की जगह कुछ अदर ही चीज जैसे कि मतलब 100% मिथेनॉल यूज कर लिया तो उसका आयोनाइजेशन चेंज हो सकता है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएगा। सैंपल ओवरलोडेड। तो सैंपल ओवरलोडेड में क्या होता है कि मैनी टाइम्स मतलब हमें सेंसिटिविटी नहीं मिलती है, मतलब वी गो थ्रू द नैनोग्राम लेवल सेंसिटिविटी, तो वी थिंक अबाउट दैट कि अगर हम एक काम करते हैं 5 माइक्रोग्राम 5 माइक्रोलीटर से जाके ना 20 माइक्रोलीटर का इंजेक्शन करते हैं, तो 20 माइक्रोलीटर का इंजेक्शन वो भी 20 माइक्रोलीटर का इंजेक्शन वो भी 20 माइक्रोग्राम पर ml एनालाइट का, तो ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से एक सैचुरेशन आएगा, तो डिटेक्टर सैचुरेशन भी आ सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज द सैंपल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो सैंपल को डाइल्यूट करना पड़ेगा या सैंपल का जो इंजेक्शन वॉल्यूम है वो कम करना पड़ेगा और आप रिफाइन योर प्रॉब्लम। पीक स्पीड। तो मैनी टाइम्स क्या होता है कि एक सिमेट्री पीक की वजह से कुछ ऐसी पीक आने लगती है, ठीक है, तो पीक बीच में से स्प्लिट हो जाती है। उसका रीजन क्या हो सकता है, कंटामिनेशन ऑफ द गार्ड और द एनालिटिकल इमेज। तो गार्ड कॉलम क्या होता है, गार्ड कॉलम क्या होता है, सेकेंडरी कॉलम होता है टू प्रिवेंट अवर कॉलम। तो एक्चुअल में फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो फॉर्मुलेशन में काम करते हैं या फिर मैं बायो एनालिटिकल में काम करता हूँ, बायो एनालिटिकल में प्लाज्मा सैंपल पे काम करता हूँ, तो मैं डिफरेंट टाइप के एक्सट्रैक्शन मेथड करने के बाद भी मैनी टाइम्स मेरा जो सैंपल होता है वो कंटामिनेट रहता है। तो क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स जाके मेरे कॉलम में एडियर हो जाएंगे, तो वन कॉलम प्राइस इज 50,000 रुपीज। तो मे भी कि हो सकता है एक ही सैंपल में मैं कॉलम को खराब कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक आगे गार्ड कॉलम यूज होता है, तो सेम गार्ड कॉलम एंड कॉलम दोनों का डायमीटर एंड पार्टिकल साइज बोथ आर सेम रहता है। तो ये क्या करते हैं कि जो मेरा कंटामिनेट है या फिर जो इंटरफियरेंस है वो गार्ड कॉलम में जाके अडेयर हो जाता है और जो मेरे कॉलम है उसकी लाइफ साइकिल बढ़ा देता है। तो गार्ड कॉलम में जो गार्ड कॉलम हमने यूज किया है, तो फर्स्ट मतलब अगर गार्ड कॉलम की वजह से आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले रिमूव द गार्ड कॉलम एंड नॉर्मल कॉलम के ऊपर चेक करेंगे कि वो सैंपल का पीक शेप सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वी फाइंड आउट की गार्ड कॉलम की प्रॉब्लम है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर एनालिटिकल कॉलम में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको रिवर्स प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो फिर नया कॉलम यूज करना पड़ेगा। सैंपल सॉल्वेंट इनकम्पेटेबल विद मोबाइल सेल। ओके, सो चेंज सॉल्वेंट जस्ट लाइक मतलब मे बी कि मैंने बोला कि जस्ट पीएच का कुछ इफेक्ट हो सकता है या फिर सॉल्वेंट जस्ट 20 mm अमोनियम एसिटेट जो सॉल्वेंट में यूज कर रहा हूँ या फिर 100 mm अमोनियम एसिटेट, तो वो सॉल्वेंट के कारण मे बी की आयोनाइजेशन का प्रॉब्लम या कुछ अदर हिंड्रेंस आ रहा हो जिसकी वजह से पीक स्प्लिट हो रही है। तो इसकी वजह से हमें जो मोबाइल फेज है प्रॉपर मोबाइल फेज चेक करना पड़ेगा कि ये मोबाइल फेज इसके लिए सुटेबल नहीं है, तो उसका मे बी 10 मिलीमोलर से 5 मिलीमोलर या 1 मिलीमोलर या फिर अमोनियम एसिटेट की जगह फॉर्मिक एसिड यूज करना पड़ेगा या अमोनियम फॉर्मेट या फिर पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, डिफरेंट टाइप के ट्रबल शूट करके हमें मोबाइल फेज चेक करना पड़ेगा। प्रॉब्लम विद द क्रोमेटोग्राम, अगर क्रोमेटोग्राम के साथ जैसे कि रिस्टोरेशन ऑफ द पीक, ओके, तो कुछ समय तक मतलब जैसे कि मैंने एनालिसिस स्टार्ट किया मतलब 1 मंथ बिफोर और बहुत अच्छी शार्प पीक आ रही थी, हो सकता है कि आफ्टर 15 डेज उसी कॉलम के अंदर वो पीक डिफरेंट शेप मतलब एक डिफरेंट ब्लाइंडी शेप टाइप का दिखाई देने लगेगा, तो उसकी वजह से मे बी कि कॉलम में कुछ प्रॉब्लम्स आया है या फिर मतलब जो सैंपल्स हैं वो मैंने बहुत ज्यादा ओवरलोडेड इंजेक्ट किया है। तो इसके लिए फर्स्ट वी रिड्यूस द सैंपल साइज, मतलब वॉल्यूम हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल जैसे कि 100 माइक्रोग्राम पर ml से 10 माइक्रोग्राम। हाँ, HPLC रिसेंटली जो HPLC है मतलब वाटर से या जो भी है, जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन रेंज कहाँ तक आप यूज कर सकते हो, अगर आप 20 माइक्रोलीटर का इंजेक्शन अगर दे रहे हो, बायो एनालिटिकल का अगर एनालिसिस का अगर ऐसे है आपका, तो आप 10 माइक्रोग्राम पर ml इज द मैक्सिमम।
मैनली मतलब 20 माइक्रोग्राम तक भी लोग बाग जाते हैं, पर 10 माइक्रोग्राम तक ही मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आप रखिए। अगर उसे लोअर, इसका 100 नैनोग्राम तक सेंसिटिविटी है। कुछ एप्लीकेशन मतलब बहुत ज्यादा लैम्डा बेस बहुत ज्यादा सूटेबल रहता है कुछ कंपाउंड के लिए, या फिर फ्लोरोसेंट डिटेक्टर पे आपने मेथड डेवलप की है तो वो 10 नैनोग्राम तक की सेंसिटिविटी आपको मिलती है। पर डोंट गो टू द मोर देन 10 माइक्रोग्राम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा आगे नहीं जाना इंजेक्शन वॉल्यूम एंड सैंपल कॉन्सेंट्रेशन। एंड अर्ली पीक में अगर मतलब पीक से खराब हो रहा है, जस्ट लाइक जैसे कि अदर पीक अगर आप देखोगे तो उनका गुड सिमेट्री है एंड पीक रिजोल्यूशन भी प्रॉपर हो रहा है, पर अर्ली पीक कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो रीजन क्या होता है, इल्यूटिंग पीक कैन बी कॉज बाय द रॉन्ग इंजेक्शन सॉल्वेंट, रिड्यूस द इंजेक्शन वॉल्यूम एंड यूज वीकर इंजेक्शन सॉल्वेंट। ओके, तो जैसे 100 जो सॉल्वेंट आप है मतलब मोबाइल पे इसका कंपोजिशन है 100 mm का है, 100 मिली मोलर का है, तो उसकी जगह पे आप 10 मिली मोलर या फिर मतलब जो बफर का कंपोजिशन ज्यादा है तो उस बफर का कंपोजिशन कम करना है आपको। प्रॉब्लम विद द क्रोमेटोग्राम इज अगेन इज द बेसलाइन। बेसलाइन दिस इज द नॉर्मल बेसलाइन। मैनी टाइम्स आपने देखा होगा फर्स्ट बेसलाइन फ्लक्चुएशन आता है। तो बेसलाइन फ्लक्चुएशन क्यों आता है, सीधा सा दिमाग में पहले ही जनरेट होता है कि जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं है। तो या तो अभी अगर ओके, तो लुक एट दिस कॉलम। तो इस कॉलम के अंदर अगर मान के चलो यहाँ पे अगर एयर बबल इंटरप्ट हुआ है तो ये मतलब मेरा मोबाइल पेज है वो कैसे रन करेगा, ऐसे आके ऐसे। तो दिस इज द फ्लक्चुएशन ऑफ द बेसलाइन एंड पल्सेटिव बेसलाइन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द बेसलाइन। तो फर्स्ट जैसे एयर इन मोबाइल पेज, तो आपको फर्स्ट मोबाइल पेज को डिगैसिंग करना है प्रॉपर वे में एंड डिटेक्टर सेल और पंप के बीच में कहीं एयर है तो डिगैस मोबाइल पेज प्लस सिस्टम टू रिमूव एयर फ्रॉम द डिटेक्टर सेल और पंप। तो सिस्टम को कैसे फ्लश करना है, so first you remove the your column and connect the union between the column part and connect your system and flow with the first मतलब ये चेक करो कि आपने अगर बफर यूज किया है तो फर्स्ट यू रिमूव द बफर फ्रॉम द मोबाइल पेज, so 100% वाटर यूज करो विदाउट कॉलम एंड देन यू गो थ्रू द सम कंपोजिशन ऑफ द आईपीए। अगर उसके बाद भी अगर बेसलाइन करेक्शन नहीं आ रहा है, एयर बबल नहीं निकल रहा है, तो आप 100% आईपीए के थ्रू भी जा सकते हो, तो एयर बबल निकल जाएगा। लीकेज में भी कुछ लूज फिटिंग है या कॉलम प्रॉपर फिट नहीं हुआ है या फिर कुछ कैपिलरीज कुछ इंजेक्शन वॉल्यूम या फिर निडल लीक है, समथिंग इज लीकेज हैपन। तो एक्चुअल में रिसेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वहां पे लीकेज डिटेक्टर है, तो वो सेंसर आपको इंडिकेशन देगा, पर मे बी कुछ ऐसे पार्ट है जहां पे डिटेक्टर नहीं है वहां लीकेज हो रहा है, तो जस्ट यू गो थ्रू द विजुअल इंस्पेक्शन। इनकम्प्लीट मोबाइल पेज मिक्सिंग, ओके, मिक्स मोबाइल पेज बाय हैंड। ओके, तो मे बी कि मैंने टाइम क्या होता है कि अभी मैंने क्या किया कि एक मोबाइल पेज प्रिपेयर किया, ओके, तो मोबाइल पेज में कंपोजिशन क्या है कि 30% वाटर, 30% मिथेनॉल, 20% आईपीए। अभी अगर मैंने प्रॉपर मिक्सिंग नहीं किया है तो आप ना विद इन सेकेंड कुछ लेयर टाइप की आप फील कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए पहले उसको अच्छी तरह मिक्स करो, शेकर करो, तो उसके बाद हो सकता है सोनिकेट करो 10 मिनट तक, उसके बाद ही इंजेक्ट करो। पंप पल्सेशन, ओके, पंप पल्सेशन में मैनी टाइम्स क्या होता है कि जो जिस पावर के साथ पंप मतलब जो मोबाइल फेज को फ्लो करता है, जैसे कि 1 मिनट पर ml उसको फ्लिट करना है, तो 2 मिनट तक 1 ml पर मिनट चल रहा है, उसके बाद कुछ समय बाद हो सकता है 0.8 मिनट से, फिर उसके बाद हो सकता है 0.9 मिनट, फिर उसके बाद 1.2 मिनट, फिर उसके बाद 1 मिनट। तो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द पल्सेशन, so you got the baseline noise. Loss of resolution. So look at there, this is the 3 experiments. So first experiment, you look at there, the all peak are good and separated and good symmetry difference. So after this you take the, you look at there, we are using here 2.87
PS of the mobile phase. Okay. Second experiment, we are using the mobile phase 3.07. So 3.07, this peak more separated out, and also this peak is more separated out. So our resolution is अच्छा हुआ. उसके बाद when we go through the 3.27, so you look at there one peak is there, so here some peak is merged, so resolution नहीं हुआ. So this is the effect of the mobile phase. Okay, so mobile phase contaminated, causing the retention time change. तो अगर कंटामिनेशन है उसमें तो वो मोबाइल फेज रिटेंशन टाइम चेंज कर सकता है. क्रिएट न्यू मोबाइल फेज ऑब्स्ट्रक्शन गार्ड एंड एनालिटिकल कॉलम, या फिर मे बी की कोई गार्ड कॉलम या फिर एनालिटिकल कॉलम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब मे बी की नंबर ऑफ इंजेक्शन जस्ट लाइक बायो एनालिटिकल का जो कॉलम है वो 2000 इंजेक्शन एक कॉलम पे इजीली होते हैं. अगर उससे ज्यादा इंजेक्शन है तो कुछ पीक डिटोरेशन या फिर सेपरेशन लूज हो जाता है, या फिर बोर्ड सिमेट्री नहीं आती है, तो वी कॉलम पीक ब्रॉडनिंग. तो मोबाइल से फ्लो रेट टू लो, मे बी मोबाइल से जिस फ्लो से होना चाहिए इसकी वजह से लो है, इसकी वजह से पीक ब्रॉडिंग आ रही है. एडजस्ट द फ्लो रेट. बफर कंसंट्रेशन टू लो, हम मे बी कि मतलब 100 मिलीमोलर की जगह आप 10 मिलीमोलर का बफर कंसंट्रेशन यूज कर रहे हो तो पीक ब्रॉडिंग आ रहा है. प्रॉपर बफर कंपोजिशन या प्रॉपर उसका एनालाइट के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है. गार्ड कॉलम कंटामिनेट, रिप्लेस गार्ड कॉलम. कॉलम कंटामिनेटेड, लो प्लेट नंबर, जस्ट मैंने अभी बोला कि 2000 नंबर 2000 सैंपल तक हम लोग 2000 नंबर सैंपल तक हम लोग मतलब एक बायोलॉजिकल में हम लोग कॉलम यूज करते हैं. अगर उससे ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम आने लगती है, तो ये रिप्लेस द कॉलम. तो अगर फीचर क्या है कि अकॉर्डिंग कि आपका कोई भी कॉलम अगर आप यूज कर रहे हो और आपका मतलब कोई भी ऐसे रन कर रहे हो तो 2000 से प्लेट नंबर ज्यादा होना चाहिए. अगर उससे कम है तो वो कॉलम खराब है, वो ऐसे आपका एक्सेप्ट नहीं होगा. वॉइड टू कॉलम इनलेट. ओके, तो कॉलम इनलेट वॉइड हुआ है, मे बी कि व्हेन वी ट्विस्टिंग द कॉलम, so metal twisting, so many times rings and other things we are using for the, so maybe called, so replace. Peak represents two or more poorly resolved compound. Change column type, improve the separation. So whole phenomena depend on the separation. So शुरू से एंड तक मैं हम separation. So what is the separation? So separation क्या है? Differential migration between the stationary phase and mobile phase. Okay. So ये differential migration कैसे होता है? So look at the one example. मान के चलो मेरा कोई friend है. Okay. So मेरा एक friend है, हम लोग ऐसे sitting each other. तो जस्ट कंपनी का ही कोई फ्रेंड है या फिर ये इंस्टीट्यूट का कोई फ्रेंड है, तो हम लोग एक नॉर्मली वे में मिलेंगे, है ना, हाय हेलो और गो. आफ्टर दिस मेरा कोई अगर घर से फ्रेंड आया है, मतलब मेरा होम टाउन और बहुत पुराना और घनिष्ठ मित्र है, वो अगर आया है तो मैं क्या करूंगा, एकदम अभी चेयर से उठ जाऊंगा और सीधा दौड़ के जाऊंगा उससे. तो दिस इज द एफिनिटी. अगर मेरी एफिनिटी मोबाइल फेस से ज्यादा है तो मैं मोबाइल फेस की तरफ रन करूंगा. अगर मेरी एफिनिटी स्टेशनरी फेस से ज्यादा है तो मैं स्टेशनरी फेस. मे बी कि 5 कंपाउंड है, कोई कंपाउंड, लुक एट द एग्जांपल. तो 5 कंपाउंड है, तो 5 कंपाउंड में किसी की एफिनिटी मोबाइल फेस से ज्यादा है तो वो विदाउट रिटर्न होके सीधा प्लस आउट. एंड कुछ कंपाउंड है जिसकी एफिनिटी कुछ स्टेशनरी फेस है वो रिटर्न समटाइम. ओके, सो स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन किया. सेपरेशन. सो लुक एट दिस. Okay, so there you look at there we got the different compound and different peaks here. Okay, so first when we put the compound is only single color. A single color. After this our compound go through the stasis phase, so separate out with the help of the column. So सेपरेशन के लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्टेटिक फेज. स्टेटिक फेज में आप देखोगे
So here, look at there. This is the one hum, other hum, and other this. So we don't get the good resolution this week. We got the good resolution this week. This week are come later. So means कि इसका इसे स्पेस के साथ एक्टिविटी ज्यादा था, इसलिए ये बाद में आया. दिस पीक आर कम नॉट ये पीक, ये मोबाइल से है. तो ये पीक नॉट अ पीक, सॉरी. तो ये मतलब सबसे पहले आया. तो मतलब अगर इसके कोई कंपाउंड अगर रिटर्न नहीं हुआ होगा स्पेसिफिक फेज के साथ, तो ये सबसे पहले ही इल्यूट हो जाएगा. तो मतलब हम बोलते हैं कि आवर कॉलम इज नॉट वर्किंग बिकॉज आवर मोबाइल पेज इज मतलब आवर पीक कम विद द मोबाइल पेज, ये रिटर्न ही नहीं हो रहा है, तो उसका ऑपरेशन कैसे मिलेगा. तो डिफरेंट डिफरेंट है. एक क्रोमेटोग्राम में क्या होता है, एक क्रोमेटोग्राम T0, TR is the retention time of this compound, TR is the retention time of this compound. Peak are coming in the form of the area and height, or area is height directly proportional to the quantity of the analyte. Okay, different application, just like chemical application, bioscience application, different pharmaceutical companies, consumer products, clinical application, and environmental application. So I am a person of clinical field. So there I am a lot of clinical applications, just like a therapeutic drug monitoring, pharmacokinetic study, bioequivalence study, bioavailability study, diagnosis of biocollecting. So this is a different application and number of application in the clinical field. So I'm not go detail in the therapeutic. What is the therapeutic drug monitoring, pharmacokinetic parameters? Okay, but simple example. Just look at there. This is the one example of the therapeutic monitoring. One drug is there. I'm not so the name of the drug. Sorry. So look at there. This graph. So this is we need what is the therapeutic monitoring. तो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग मतलब कि मॉनिटरिंग करना है ड्रग को और उस लेवल तक करना है कि मतलब क्या होता है कि ये कोई ड्रग है, एंटी फंगल ड्रग है जस्ट लाइक. तो उस एंटी फंगल ड्रग की जो थेरेप्यूटिक रेंज है वो 1 से 6 है. मतलब अगर बॉडी के अंदर 1 से 6 माइक्रोग्राम पर एमएल तक अगर बॉडी के अंदर रहेगा तो वो एक्टिव रहेगा. अगर उससे कम हो गया तो हो सकता है उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा. अगर उससे ज्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा. तो बिफोर द थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग हम लोग क्या करते थे कि डोज ऐसे ही देते थे. एक हाइपोथेसिस बेस कि अगर मैंने इतना डोज दिया है तो इस डे तक मतलब उसका थेरेप्यूटिक रेंज रहेगा विदाउट दैट मेजरिंग द concentration of the plasma sample. After this, we go through the plasma sample analysis and we check कि okay अगर इतना concentration कम करते हैं तो इतना concentration मिलेगा. तो क्या हुआ कि look at there, we reduce the dose. मतलब एक पेशेंट को हमने अभी इतना ही डोज देते हैं जिसके कारण उसको थेराप्यूटिक इंडेक्स मिलता है. ओके, so this is the application. बायोइक्विवेलेंस एप्लीकेशन. बायोइक्विवेलेंस एप्लीकेशन में क्या है, जो ड्रग है नाम नहीं शो करूंगा. So मतलब जस्ट लाइक ड्रग इज वन इज द इनोवेटर ड्रग, अनदर वन इज द जेनेरिक ड्रग, और वो ड्रग है एंटी कैंसर एक्टिविटी. तो दिस ड्रग प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, क्योंकि उसको नहीं पता है कि जेनेरिक ड्रग अच्छी तरह काम कर रही है कि नहीं कर रही. तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बायोइक्विवेलेंस स्टडी डिजाइन करना पड़ेगा. उस बायोइक्विवेलेंस स्टडी में हम पेशेंट को एक रैंडमाइज ट्रायल करना पड़ेगा. उस एक ट्रायल को मतलब एक इनोवेटर ड्रग देना पड़ेगा, दूसरे को जेनेरिक ड्रग देना पड़ेगा. अगर दोनों का पैरामीटर अगर इक्विवेलेंस है मतलब इक्वल है, मतलब फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर या AUC ऑफ द ड्रग ये सारे इक्वल है, तो हम वी गो थ्रू द जेनेरिक ड्रग. तो इसमें पेशेंट का और हमारा क्या फायदा होगा, इकोनॉमिकल फायदा होगा, क्योंकि इनोवेटर ड्रग है वो 50,000 का 1 इंजेक्शन है और वहीं पे जेनेरिक ड्रग का 10,000 में आ रहा है. तो यू थिंक अबाउट दैट. So what is the flow of the bioanalysis? Bioanalysis में क्या करते हैं कि first we take the sample कलेक्ट करने के बाद सैंपल प्लाज्मा सेपरेट करते हैं, क्योंकि बायोएनालिसिस प्लाज्मा में या फिर यूरिन सैंपल या सलाइवा सैंपल डिफरेंट मैट्रिक्स में होता है. तो वी कलेक्ट द plasma sample. After the collect the plasma, we extract our sample with the help of the different extraction method, just like a solid phase extraction, protein precipitation extraction, different. So we go through the solid phase extraction with cartridge.
Okay, after the run the SPLC, when we look at the chromatogram, after the chromatogram, we plot the graph, we look at there, जिसका मतलब जिसका पीक सबसे ज्यादा है, मतलब डायरेक्टली पीक हाइट एंड पीक एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, तो उस सैंपल में उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. एंड ऑल्सो y इक्वल टू mx प्लस c, ये लीनियरिटी का इक्वेशन है, उससे भी प्लॉट करके बैक कैलकुलेट करके हम एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो अगर कोई मतलब मैंने ये सैंपल मैंने ये अपने स्टार्टिंग एक एसओपी रखा है. अगर somebody आर इंटरेस्टेड टू बायो एनालिसिस कि अगर हमारे पास प्लाज्मा सैंपल है तो उसका कैसे एनालिसिस करना है, कैसे मेथड डेवलप करना है, कैसे उसका फ्लो होता है, तो जस्ट गो थ्रू द दिस एसओपी. फर्स्ट यू प्रिपेयर द स्टॉक, मतलब एक आपको 100% जिस ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है ना, तो उसका आपके पास प्योर स्टैंडर्ड होना चाहिए. उसका 1 mg पर ml का एक सॉल्यूशन बनाओ. इस सॉल्यूशन को सेकेंडरी डाइल्यूट करो विद द हेल्प ऑफ द सीरियल डाइल्यूशन, तो सेकेंडरी स्टॉक सॉल्यूशन बनेंगे. सेकेंडरी स्टॉक सॉल्यूशन के बाद अब आपको स्पाइकिंग करना है प्लाज्मा में. तो प्लाज्मा में स्पाइकिंग करने के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, कितना कैलिब्रेशन रेंज होना चाहिए, वो कैसे डिटरमाइन होगा? वो डिटरमाइन होगा ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स कि आपको किस लिमिट तक आपको सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है. मे बी कि 5 पेशेंट है, एक पेशेंट में 10 माइक्रोग्राम पर ml कॉन्सेंट्रेशन है, दूसरे पेशेंट के सैंपल में 5 माइक्रोग्राम है, तीसरे के में 2 माइक्रोग्राम है. तो आपका कैलिब्रेशन रेंज 0.5 माइक्रोग्राम पर ml से लेके 15 माइक्रोग्राम पर ml तक होगा, जिससे कि 4 रेंज आप कवर. Okay, so this is the preparation of the calibration standard with the stacking of human line plasma. Okay. So after you got the sample, so here I am explain the simple protein precipitation extraction method. So when you got the sample, so look at there, you got the sample. After the sample extraction, you go through the take the 100 microliter of the sample and add the 100 microliter acetonitrile, water it and centrifuge 15,000 rpm 10 minutes and take the so you look at there the protein precipitated here and to you separate out the supernatant 900 microliter. After this speed wave, so you dry your sample total with the help of the vacuum. And again drying the sample, you go through the reconstitute or your solution. So reconstitute solution क्या होता है? मोबाइल फेज का जो कंपोजिशन होता है वही होता है. And after this you load on the SPLC vials, and after the SPLC vials, reconstitute the solution again centrifuge, take the supernatant and load on the 90 microliter in the SPLC vials and load on the SPLC, and you got the some calibration curve. And you'll find out the concentration. So we have other examples, just like other study here in the our Tata Memorial Hospital. This is the one example is osmitinib is one drug, anti-cancer drug. Okay, so this is a generic versus the innovator experiment design. So we find out that जो generic है उसका ऐसे वैल्यू मतलब जो लेवल क्लेम है वो इनोवेटर के इक्विवेलेंट है कि नहीं है. तो इसलिए वी डिजाइन द वन एक्सपेरिमेंट, तो ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करना है. ऐसे वी गॉट द chromatogram and the chromatogram in form of the area, and we matching the area with the help of the this formula, and we find out the purity of the compound. After is the assessment of the quality of generic drugs available in the Indian market. Okay, this is a nice project in our unit. Here, just like a Tata Memorial Hospital purchase those drugs, तो वो खुद जेनेरिक मतलब क्वालिटी चेक करता है कि मतलब जो भी जेनेरिक है. तो जैसे कि नंबर ऑफ जेनेरिक अवेलेबल इन द मार्केट जस्ट लाइक 30 and 50. तो विच कैंसर ड्रग इज उसको परचेज करना है, तो वो फर्स्ट क्वालिटी ऑफ जेनेरिक जो इसका मतलब क्वालिटी चेक करेगा, देन वी गो थ्रू द ट्रीटमेंट. So this is the different drugs, quality of generic method of production and others. Okay, this is a list of my publication here.
we lots of develop the method, bioanalytical method in these all projects. Okay, so thank you all of you, thank you the listeners, thank you the faculty member, thank you the PC ma'am. तो conduct this talk. Hope मेरी कि आपको ये सब पसंद आया होगा. Thank you all of you. So any question? Can you stop the screen share? Yeah, sorry. Hello. Yes, it's audible now. Thank you, Mr. Murari. It's really a nice session we have, and I request all the participants, those who are connected, if you have any query that relevant to our HPLC and the bioanalytical part, please feel free to ask. You may write down in a chat box. Otherwise, I can change the setting. You can directly ask. I'm just unmute all. So you can unmute yourself. If you have queries, you can ask one by one. That will be okay. Thanks, Dr. Ravi Kiran, for your message. Thanks to all, like you really connected in this session. Mr. Murai, I have a question that's like collect from a FB Live, that can we isolate sufficient amount of degradation products using analytical RPHPLC? No, you are muted. Yeah, sorry. Yeah. Again, please repeat the question. Separate degraded products from the with the help of the reverse phase chromatography. Hello. Yes, you're audible. Yeah. So with the help of the reverse phase chromatography, you identify and also you quantify the degraded product. Because in the pharmaceutical company, we develop the method stability method for the formulation for formulation compound. Because मतलब किसी इंडिया या मतलब we need the transportation of our drug in the different region, different environment and different places. So we need the full stability. We check the full stability of the drug. So first we go through the different temperature, different humidity, and different environment. So after this, lots of degraded material is formed. And maybe this is the impurity, and maybe this is the degraded metabolite. So with the help of the reverse phase chromatography, we go through, no problem. Okay. So that I received one more question that somebody is working on that. He said I'm using this reverse phase HPLC with a mobile phase, that one, the acetonitrile. So he wanted to know that how I can eliminate the baseline noise that comes in HPLC. Okay. So first of all, I'm not understand because mobile phase have some composition, maybe the acetonitrile and maybe the buffer. Sorry. Mobile phase is the composition. So maybe the baseline comes from the जैसे मैंने अभी बोला था कि मतलब जैसे कि concentration of the मोबाइल phase जो solvent का composition अगर आप बढ़ाओगे या concentration बढ़ाओगे तो baseline में कुछ problem आएगा. क्योंकि क्या होता है ना जो acetonitrile मतलब सिंपल सा फिनोमिना है जो एसीटोनाइट्राइल है
ओके, तो एसीटोनाइट्राइल इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कभी भी आप ना कोई भी सॉल्ट, NaCl इज अ सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट आप ऑर्गेनिक में डिजोल्व नहीं कर सकते हो। तो मे बी जिसने क्वेश्चन राइज किया है, मे बी हो सकता है कि जैसे ही उन्होंने एसिडोनाइट्राइल का फर्स्ट फ्लो दिया होगा और उसमें कुछ पार्टिकल मतलब पहले से ट्यूब के अंदर बफर के होंगे, तो वो वहां पे प्रेसिपिटेट हो गए होंगे। तो पहले वो पार्टिकल्स को वहां से रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए उनको हॉट वाटर 60% हॉट वाटर से अपने HPLC को पर्च करना पड़ेगा। एंड फर्स्ट एक और चीज चेक करना पड़ेगा कि जो HPLC होती है, HPLC जहाँ पे ट्यूबिंग होती है, जहाँ पे मोबाइल से डिप करते हैं, वहां पे फिल्टर्स होते हैं, मेटल फिल्टर में भी अधिकतर HPLC में, तो वो मेटल फिल्टर को भी सोनिकेट करना पड़ेगा। मेनी टाइम्स क्या होता है, बहुत दिनों से उसमें फंगल ग्रोथ होता है, क्लॉग हो जाते हैं। एंड ट्यूबिंग अगर ट्रांसपेरेंट ट्यूबिंग है तो उसको चेक करना पड़ेगा कहीं अंदर फंगल ग्रोथ तो नहीं हो गया। तो दिस इज द कॉज ऑफ द बेसलाइन प्रॉब्लम। होप मे बी कि मैंने आंसर दिया हो या समझ में आया हो। अगर नहीं है तो यू डायरेक्टली राइट ऑन माई ईमेल ID, ऑल्सो मोबाइल कॉन्टेक्ट, मोबाइल नंबर भी है मैम के पास ही है, तो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट, नो प्रॉब्लम। Okay. Uh, Dr. Rashi has joined us from, I think she's from Dubai, I think. She has like query that what should I do to remove the solvent peaks that shows inconsistently at a specific retention time? She's also in Zoom या also. या And even she wants more focus on like bioanalytical parts. What are the guidelines? Yeah, this is the part, but it's okay. Yeah. But I have also one example because I'm doing the analysis of Dr. Wilson, or Dr. Wilson come the some solvent piece. Maybe two things will happen. Maybe कि जो मेरे पास प्रोडक्ट है, मे बी 100% जो प्योर पाउडर है, उसमें हो सकता है कुछ ऐसी इम्प्यूरिटी है वो बार बार रिपीट होके आ रही है, या फिर फर्स्ट आप चेक करना पड़ेगा अगर जो क्वेश्चन अराइज हुआ है कि ब्लैंक में भी वो पीक है कि नहीं है। अगर वो पीक ब्लैंक में है तो हो सकता है कि जो लैम्डा मैक्स हमने देखा है वो सूटेबल लैम्डा मैक्स नहीं है, जिसमें कि मोबाइल फेस का पीक भी उस लैम्डा मैक्स में दिखाई दे रहा है। तो मे बी वी वांट टू चेंज द लैम्डा मैक्स, या फिर अगर वो होस्ट पीक है, मतलब तीन या चार तरीके की पीकें आ सकती है। मे बी कि कुछ मोबाइल फेस के साथ आ रही है तो कुछ समय बाद गायब हो रही है, रेगुलर वे में नहीं आ रही है, तो इसका होस्ट पीक। अगर होस्ट पीक आ रही है तो मे बी की कमिंग फ्रॉम द कॉलम, मे बी की कल मैंने जो कॉलम यूज किया वो अदर एनालिसिस के लिए यूज किया, उसका कुछ पार्ट होगा वो अपने मोबाइल फेस के साथ, आपके मोबाइल फेस के साथ रिएक्ट होकर लीच आउट हो रहा होगा, इसके कारण हो सकता है। या फिर जो कॉलम जो HPLC ट्यूबिंग है, जैसे कि मैंने अभी फंगल ग्रोथ की बात की थी, लॉस ऑफ HPLC मैंने देखा है जहाँ पे लॉस ऑफ फंगल ग्रोथ होती है। रीजन क्या होता है कि हम लोग अमोनियम एसिटेट या अमोनियम फॉर्मेट बफर यूज करते हैं, विद इन 2 डेज में फंगल ग्रोथ हो जाता है, वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। अगर 3 दिन रखोगे तो वो बहुत हैवी हो जाता है, जैसे ऑल्सो फंगल ग्रोथ, और वो जाके ट्यूब में एडियर हो जाता है, उसको क्लीन करना पड़ेगा। अगर फिर भी अगर मतलब वो बेसलाइन जो पीक है अगर नहीं जा रही है तो मे बी कि दिस इज कमिंग फ्रॉम द मोबाइल फेज, जो कि एसिटोनाइट्राइल आपने यूज किया है वहां से आ रहा है, या फिर वाटर का फिल्ट्रेशन असेंबली जो यूज की है, फिल्ट्रेशन असेंबली में पहले किसी ने कुछ अच्छा खासा मतलब 100 मिली मोलर का कॉन्सेंट्रेशन का मोबाइल फेज फिल्टर किया होगा और आपको नहीं मारा होगा, आपने प्रॉपरली रिंस नहीं कर पाया होगा, तो ये प्रॉब्लम है। या फिर सोर्स फ्रॉम द मिली क्यू असेंबली, जो फिल्टर असेंबली मिली क्यू वाटर आप यूज करते हो वहां से अगर उसका कैलिब्रेशन नहीं है प्रॉपर, तो दिस इज द सोर्स ऑफ द होस्ट पीक। Okay. Hope Dr. Rashi has received her answer of her question. And thank you, Mr. Murari Gurjar, once again for your knowledgeable session. And really, actual point of view, you have covered that like basic to and all the parameters that must be required in the consideration. And what about like I'm a little bit more towards the bioanalytical part and some guidelines. So you, in short, you just wanted to say like your experiences and how the researchers will work on that part also. So right now you want to bioanalytical guideline. Yeah.
So what specific guidelines? There are so many researchers, they are associated in this or in a So you give, yeah. So you give me only on 2 minutes. So again, one bioanalytical guideline PPT is ready. Okay. So I'm share with Zoom. Okay. So this is helpful to lots of people. Maybe just a 2 minutes. Give me a 2 minutes. That's really want like if you have two or three like guideline parameters so that people will understand what they has to follow. Yeah. No problem. Just a 2 minutes. Huh? Meanwhile, if you guys have any Somebody want to ask. okay. Yeah, meanwhile, somebody asked you question, no problem. Okay, so maybe I solve the question. So please ask, no problem. So just we are taking the break. Mr. Murari is coming with the guidelines which we needed for the bioanalytical parameters and bioanalytical studies. So it will be very much important so that it will be covered in the session that must be needed. And if anybody want this session on LCMS, so you write on a chat box because he's having the session on LCMS also tomorrow. So for that, we need to change the time because in the evening session, we have Dr. Kiran Jathar with us for enema. So if really you guys are wants the session on LCMS, so he is ready for that. But we want your interest. How much time is Just a minute, huh? I can't find out our. Okay, we go through the direct Google, no problem. so at what time you guys are comfortable? Can you please write in a chat box because uh, to as I'm not well. I just had the drip. I just came from the hospital. Tomorrow I'm going for my test. So it will be in the morning or it will be in the evening tomorrow. So that's up to you. Because during the afternoon session, I will be in hospital for some routine checkup because due to my health issue. You just covered verbally if you want like Yeah, no need to okay, no take problem. So maybe there's a problem with network. Okay, sorry. Okay, so for a bioanalytical analysis, we go through the USFDA guideline. Okay, lots of just you type the Google USFDA guideline for bioanalytical. So 2019 amended the bioanalytical guideline to change the some parameters. So there you look at there two types of the दो तरीका से उन्होंने मतलब गाइडलाइन बनाया है बट फॉर द बायोलॉजिक्स जस्ट लाइक अ बायोलॉजिक्स के लिए अलग है और अगर ब्लड कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है इन प्लाज्मा सीरम या फिर मतलब डिफरेंट मैट्रिक्स में तो उसके लिए अलग है बायोलॉजिक्स क्या होता है जस्ट लाइक एंजाइम एंटीबॉडीज कंसंट्रेशन क्योंकि उनका क्या होता है टाइम टू टाइम डिग्रेडेशन होता है तो इसीलिए उनके कुछ पैरामीटर चेंज किए हैं और अगर ड्रग कॉन्सेंट्रेशन का आपको फाइंड आउट करना है तो उनके पैरामीटर अलग है तो अगर आपको ड्रग कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट यू गो थ्रू द परचेज द स्टैंडर्ड जो कि स्टैंडर्ड 99.9% प्योर होना चाहिए अगर इट्स नॉट पॉसिबल जैसे कि अभी मैं राइट नाउ रिसेंटली कोकोमीन पे काम कर रहा हूँ
तो कुर्कुमिन का 99.9% पाउडर नहीं मिल रहा है, तो 90%, तो 90% जो मेरे को मिल रहा है उसको मेरे को याद रखना है कि कैलकुलेशन में ऐड करना है, नहीं तो अदरवाइज आप फॉल्स रिजल्ट डेवलप करोगे। तो बायोएनालिटिकल गाइडलाइन में क्या है, फर्स्ट पैरामीटर आपका आता है, सबसे फर्स्ट पैरामीटर आता है कैलिब्रेशन। तो जो कैलिब्रेशन होता है, कैलिब्रेशन क्या होता है, दो कैलिब्रेशन दो चीजों का होता है, एक तो इंस्ट्रूमेंट का भी कैलिब्रेशन हो जाता है उसी से जो आप कैलिब्रेशन प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि मतलब बायो एनालिटिकल में, जैसे कि मैं एनालिटिकल में क्या होता है कि एनालिटिकल में आउटसाइड आउटसोर्स या फिर मतलब थर्ड पार्टी कैलिब्रेशन प्रोड्यूस कर देती है। बायो एनालिटिकल में मतलब आपको खुद टाइपिंग करना है, खुद ही कैलिब्रेशन का प्लॉट करना है, खुद ही कैलिब्रेशन प्रिपेयर करना है, अदरवाइज थर्ड पार्टी मतलब अभी इजिली इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है ना, तो आपको खुद प्रिपेयर करना है। तो कैलिब्रेशन से क्या होता है कि जब आप कैलिब्रेशन रन करोगे तो कैलिब्रेशन के कुछ पैरामीटर होते हैं कि आर स्क्वायर, जो लीनियरिटी फैक्टर है आपका आर स्क्वायर 0.99 से 1 के बीच में होना चाहिए। अगर वो 0.99 से 1 के बीच में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कहीं प्रॉब्लम किया है। ओके, तो आफ्टर दिस आफ्टर दिस कि अगर 0.99 नहीं आ रहा है तो या तो आपने कहीं सैंपल प्रिपरेशन या नदर्स में कुछ प्रॉब्लम किया है, या आपका पेपर कैलिब्रेट नहीं है, या आपका अभी इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन नहीं है, तो इस बेसिस ऑफ पैरामीटर आप इसके बाद यही पैरामीटर एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट इसको हम लोग मतलब जो 0.99 आर स्क्वायर बोलते हैं उसको लीनियरिटी बोलते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर डिसाइड करना होता है लीनियरिटी है कि नहीं है, क्योंकि मैनी टाइम्स क्या होता है कि जब आप मतलब सिस्टम की भी खुद की लीनियरिटी होती है। अभी अगर आपने जैसे कि लीनियरिटी डिसाइड किया है 0.1 माइक्रोग्राम से 10 माइक्रोग्राम, तो इट नॉट नेसेसरी कि उसको में आपको लीनियरिटी मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कि 10 माइक्रोग्राम कॉन्सेंट्रेशन स्पेसिफिक टू द डिटेक्ट है, तो आपको क्या होगा, लीनियरिटी की जगह इस तरीका से ग्राफ आ जाएगा। ओके इस तरीका से, सो दिस इज नॉट अ लीनियर ग्राफ, तो हाइपरबोला हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा तो उसका कैलकुलेशन अलग होगा। एंड ऑल्सो एक टाइम के बाद आपको सैचुरेशन का सारी वैल्यू सेम आएगी, तो दिस इज रॉन्ग। तो फर्स्ट यू डिसाइड द लीनियरिटी, लीनियरिटी डिसाइड करने के बाद यू चेक द पैरामीटर ऑफ लीनियरिटी, आर स्क्वायर ये 0.99 आना चाहिए। फिर उसके बाद यू चेक द एक्यूरेसी, आपने अगर आपके सैंपल को 10 बार रन किया है तो वो एक्यूरेट होना चाहिए। आफ्टर दिस यू चेक द प्रिसीजन, प्रिसीजन दो टाइप्स होता है, प्रिसीजन इंटरडे प्रिसीजन, इंटरडे प्रिसीजन एंड इंट्राडे डिसीजन के अंदर मतलब इंटरडे मतलब एक ही दिन में आपको 2 बार चेक करना है, सुबह शाम, तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, उसका मतलब गाइडलाइन का लिमिट है ±15%। ये हम लोग क्वालिटी कंट्रोल सैंपल पे करते हैं, तो ±15% के अंदर ही उसकी वैल्यू आनी चाहिए। इंटरडे के अंदर मतलब एक ही दिन में 2 बार मतलब थोड़ा सा इंट्रा, ओके इंटरडे मतलब अलग दिन आपने यूज किया है तो उस दिन आपको चेक करना है, तो 3 सेट आपके पास पहला एक ही दिन के 2 सेट और तीसरे दिन का 3 सेट, इन तीनों का कंबाइन करके आपको देखना है कि आपका जो परसेंटेज सीबी है क्यूमुलेटिव वेरिएशन वो ±50% के अंदर आना चाहिए। उसके बाद आपका मेथड सेंसिटिव होना चाहिए, सेंसिटिव मतलब हर एंगल से, मतलब मिडिल वाली वैल्यू को भी अच्छी तरह डिटेक्ट करना चाहिए, लोअर लिमिट ऑफ द क्वांटिफिकेशन को भी अच्छी तरह डिटेक्ट करना चाहिए, हाई लिमिट ऑफ द क्वांटिफिकेशन को भी अच्छी तरह डिटेक्ट करना चाहिए। हो सकता है कि आपका मेथड हायर जो पीक आ रही है उनको तो बहुत अच्छी दिखाई दे रहा है, जो लोअर पीक है उनका मतलब डबल पीक हो गए, सिंगल पीक हो गए, तो दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल इन द बायोएनालिटिकल फील्ड। तो हाउ टू चेक, तो यू रन द सेंसिटिविटी सैंपल। तो आपको क्या करना पड़ेगा सेंसिटिविटी के लिए, आपका जो LLOQ मतलब लोअर लिमिट ऑफ द क्वांटिफिकेशन है उसको 10 बार 6 टाइम्स मतलब रिपीट करना पड़ेगा, 6 टाइम्स के बाद उसका एक्यूरेसी ±15% के अंदर आना चाहिए। उसके बाद सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी मतलब कि आपके कंपाउंड के प्रति आपका मेथड सिलेक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि अभी क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसमें कम से कम 1000 ऑफ ड्रग की रेजिडी चल रही होगी। अगर पेशेंट कैंसर का है तो आप सोच सकते हो कि इसके पास एक वीक के अंदर कितनी ड्रग उसने खाई होगी, वो सैंपल आपके पास आ रहा है, साथ में ड्रग, साथ में उसका केमिकल, मतलब बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल इज द ग्लूकोज इज द केमिकल, फूड इज द केमिकल, ऑरेंज जूस इज द केमिकल, ऑल दिस इज द केमिकल। अगर ये केमिकल सोचो कि एक सैंपल के अंदर कितना सारा कंपाउंड है, उसमें से आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल चीज को सिलेक्ट करके आपको एनालिसिस करना है, तो ये सारे केमिकल, ओके, तो ये सारे केमिकल के प्रति आपकी मेथड स्पेसिफिक होनी चाहिए फॉर द एक्सट्रैक्शन मेथड। और
साथ में आपकी HPLC मेथड। अगर कुछ अगर सेंसिटिविटी नहीं सिलेक्ट हो रही है तो फिर आपको उसके हिसाब से फिर डिटेक्टर चेंज करना पड़ेगा, या यू गो थ्रू द LCMS। ओके, तो ये सेंसिटिविटी है। फिर उसके बाद रिप्रोड्यूसिबिलिटी होना चाहिए, मतलब आप अगर पीएच चेंज करो तो आपको थोड़ा मतलब गाइडलाइन में है उसका कि मतलब पीएच कितना चेंज कर सकते हैं, फ्लो कितना चेंज कर सकते हैं। तो जो पीएच एंड फ्लो चेंज करने के बाद आपको आपकी मेथड सेम रिजल्ट दे। उसके बाद अगर मैं इंडिया में काम करूं तो मेरे को उस मेथड से वही सेम रिजल्ट आना चाहिए, यूएस में काम करूं तो उस मेथड से। तो इसलिए आपको दोनों जगह देखना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट इंजेक्शन लेके डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पे कि आपकी मेथड सेम काम कर रही है कि नहीं। तो इधर रिप्रोड्यूसिबिलिटी। फिर उसके बाद रिप्रोड्यूसिबिलिटी के बाद आपको चेक करना पड़ेगा आपका रिकवरी, क्योंकि एक्चुअल में मेरा सैंपल ना प्लाज्मा में है और डायरेक्ट प्लाज्मा तो मैं HPLC में रन नहीं कर सकता हूँ। अगर एकदम प्लाज्मा, मैनी टाइम्स इंडिया के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूशन के चक्कर में रहते हैं। अगर सेल कल्चर का सैंपल है डाइल्यूट कर लो, अगर प्लाज्मा का सैंपल है डाइल्यूट कर लो, अगर आप यूरिन सैंपल है डाइल्यूट करके लोड कर लो। 110% मैं लिख के दे सकता हूँ कि उससे अगर डाइल्यूट करने के बाद उस कॉलम पे सिर्फ और सिर्फ 10 सैंपल ही आप चला सकते हो। इसके बाद आपकी पीक कैसी आएगी, क्या आएगा, क्या थ्रेटिकल प्लेट वैल्यू होगी, वो भगवान मालिक है। ओके, तो डोंट डू द डाइल्यूशन। वो सिंपल मेथड होती है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन मेथड, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन मेथड, यू गो थ्रू द दिस मेथड, है ना। अगर आप मतलब गूगल सर्च करोगे कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट द ड्रग फ्रॉम प्लाज्मा, फ्रॉम सेल लाइसेट, फ्रॉम सेल कल्चर, तो बहुत सारे मेथड गूगल पे है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो गो थ्रू द डाइल्यूशन, डोंट डू द डाइल्यूशन मेथड, गो थ्रू द प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एंड अदर मेथड, एंड जो भी मतलब अवेलेबल मेथड है पर डाइल्यूशन मत करो। उसके बाद सेकंड मेथड जस्ट लाइक कि अगर कंपाउंड बहुत ज्यादा लाइट सेंसिटिव है तो आपको फिर मतलब लाइट सेंसिटिव का भी कुछ पैरामीटर चेक करने पड़ेंगे कि कितने दिन तक, मतलब कितने लक्स तक वो कंपाउंड लाइट सेंसिटिव है, या मतलब यूवी लक्स कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसके अंदर चेक करना पड़ता है कि मतलब ये इसको एप्लीकेबल है कि नहीं है, लाइट में डिग्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम साइकिल का देखना पड़ता है। इन बायो एनालिटिकल में स्टेबिलिटी का थोड़ा डिफरेंट प्रोटोकॉल है। बायो एनालिटिकल में स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं होती है, जस्ट लाइक जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी 2 ईयर तक 3 ईयर तक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चलती है। बायो एनालिटिकल में 1 ईयर इज मैक्सिमम। वो भी देखना पड़ता है कि करना है कि नहीं, क्योंकि 1 ईयर तक सारे पेशेंट एनरोल हो चुके होते हैं और 1 ईयर में अगर पेशेंट एनरोल हो गया, उनका प्लाज्मा डिग्रेड हो गया तो दैट्स प्रॉब्लम। तो बायो एनालिटिकल में हम लोग जाते हैं कि तुरंत मेथड डेवलप करो, तुरंत मेथड वैलिडेट करो और तुरंत एनालिसिस करो। अगर फिर भी अगर स्टेबिलिटी में जाना है तो स्टेबिलिटी में मतलब फर्स्ट बेंच टॉप स्टेबिलिटी, बेंच टॉप स्टेबिलिटी में आपको डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको चेक करना है, बेंच के ऊपर चेक करना है कि आपका जो कंपाउंड है वो आपके सॉल्यूशन में स्टेबल है कि नहीं है। प्लाज्मा को कभी भी बेंच टॉप स्टेबिलिटी नहीं करते हैं। उसके बाद जो आपने सैंपल बना लिया है एक्सट्रैक्शन करने के बाद, तो उसका अगेन बेंच टॉप स्टेबिलिटी करते हैं। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि जब प्लाज्मा को स्टोर करते हैं जैसे -20 या -80 के अंदर, तो उसको एक बार प्लाज्मा को फ्रीज से बाहर निकाला तो उसका चेक करते हैं स्टेबल है कि नहीं है। फिर दूसरी बार निकाला फिर स्टेबल है कि नहीं, तीसरी बार निकाला। तो ये कितनी साइकिल, क्योंकि प्लाज्मा को बार बार बाहर निकालना भी होता है। प्लाज्मा थॉन होने का रीजन क्या होता है कि प्लाज्मा में सारे एंजाइम होते हैं, वो ड्रग को डिग्रेड कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। So this is bioanalytical different Thank you parameters, so मतलब much. lots of things. Hopefully, we covered maximum question, and whatever the questions we, uh, uh, taken from the other platforms. So definitely, I will discuss with you. And for the LCMS, we are planning tomorrow. Please tell me your convenience time. Okay, so tomorrow, somebody written there is a morning 10 a.m. It's okay, no problem. For LCMS is not too deep. Just introduction of the LCMS, different waveform of the LCMS, and just we go through the one example. So it's okay. मतलब 1 hour session is okay. That will be okay, because in the morning, if we can cover, maybe many of like going to the office, I think that's what they Hmm. are saying. Morning time, please, okay. So that will be okay. 10 a.m. I think. या फिर मैं मतलब अभी घर से आके मतलब
आपको कॉल करता हूँ, तो आप बस प्लीज फॉरवर्ड कर देना मैसेज। थोड़ा मेरे को सोचना पड़ेगा कि 10 इज ओके या नॉट। 11 o'clock, We can plan some other day, no issue. yeah, that's okay, that's okay. So I think tomorrow we can go with this NMR, and then Yeah, day after tomorrow we can extend one day, so you can yeah, cover yeah, of this course. LCMS. Yeah, yeah, of course, no problem. Day after tomorrow या next week you plan anytime, no problem. So not a evening, मतलब maybe कि yeah, evening time is okay, no problem. So next week and Sunday, sorry, Sunday is not now. And then even So, okay, yeah, yeah. okay, no issue, So no issue. so you go through the next week, no problem. And also one mention there is LCMS and If GCMS. we, if So we can if we can cover this tomorrow, though that will be okay. If you are comfortable in the morning. yeah, 11 o'clock is okay, no problem. Okay, I go. Uh, Okay, but sorry, I have a no experience. no issue. No, somebody Uh, mentioned thank there. Please explain Thank you the. so much, Mr. Murari, for giving your time, and still you're in the office and sparing your time and knowledge with us. And all the people are really highly delighted because we really want this session. Because the practical command before going for performing, we need to know each and every parameter and how we handle this situation, how we can optimize, how we can face all these hurdles. So that is very much required. Okay. So for LCMS, we are going to tomorrow morning. Morning, 11 o'clock. Okay. So I request all the participants be ready tomorrow morning, the 10 a.m. We will be meet in the same platform, same meeting ID, same password. And whatever the queries and whatever the hurdles you are facing, so you are come up with that. You can take a diary, pen, and be in a formal, be in a professional formal uniforms in a proper gesture, so that we can cover all the peaks in a single frame. So thank with Yeah. this words, thank you so much. Tomorrow we'll meet morning Yeah. 10 a.m. Yeah, somebody written there is LCMS and GCMS. So sorry guys, I have no idea about the GCMS and मेरे को बिल्कुल भी experience नहीं, but LCMS I cover, no problem. Okay. So he has more command on the LCMS and the HPLC, so he is going to cover that part. हमें experiment नहीं कराएंगे कुछ भी. No problem. I'm ready to know. Thank you, ma'am. No problem. Thank you. Bye bye. See you tomorrow morning. Bye bye. Yeah, bye bye. 11